I extend warm welcome to all of you on behalf of the Unique Academy in this very fascinating journey, though very challenging, right? And this is kind of introductory lecture. I'm aware of the fact that you had a series of webinars on YouTube, isn't it? I hope you might have listened to those lectures as well. We conducted few lectures in terms of understanding this examination. So we are starting back on 23rd May, isn't it? And this is a different kind of exercise. What we used to do in the last year is, once the batch starts, we had all those introductory lectures. But why waste time, right? So we thought of doing that as a prelude to the batch, right? As a run up to the batch. So from today onwards, we are having those lectures which are called introductory lectures. Today's lecture is introductory in general. We will talk about different facets of preparation, dimensions of preparation. And from tomorrow onwards, you will have introductory lectures to particular subjects, isn't it? Okay. So that is what we have decided. And on 23rd May, which would be your first day of the batch, right? Officially speaking, right? On that day, you have a lecture of Honorable Tukaram Jadhav sir, Director of the Academy, on 23rd of May. So let us begin today's lecture. I think you have 3 booklets with you. And those who are online, don't worry, I will share that with you guys as well, right? So one booklet is Approaching Civil Services Examination. This is what we intend to discuss today, right? A plan of action. You can go through that and read that carefully, twice, thrice. Then there is one booklet, Essay Writing, Comprehending Important Terms in Questions. You know, these are 2 queries which generally come in front of us frequently every year. How to write an essay, right? Okay. And I know that we have done that in 10th and 12th. But essay writing here is a different ballgame altogether, right? You have to write long essays as compared to what we used to do. Plus, the subjects are not that easy. Something that we encounter in the schooling that is different, and this is different. They expect some kind of maturity, right? So how to do that? Then comprehending important terms in questions. This is one area that we observe that many people don't understand. There are some certain key terms in the questions like comment, examine, right? Evaluate, assess, critically examine. So you are supposed to add that flavor to the answer. I know it's too early to talk about answer writing immediately, right? But try to understand this. If you write everything which is a relevant content, but if you're not able to provide that punch, say comment, examine, evaluate, your answer is still incomplete. Are you getting this? So it is very important to understand the key terms in the question. So that is covered here. So essay writing, basic information of essay writing, and then important terms in questions. This is quite basic material, huh? And then there is one booklet which tells you about different posts in this examination, right? Something that you are interested in ultimately, isn't it? And eligibility criteria, basic information about the examination, scheme of examination, something that we have talked about in different webinars, right? Papers to be counted for merit and all that. We have talked about this in webinar if you have attended it. If not, you have that in your booklet, right? So this is schedule of batches and all that basic information. I would share my presentation so that we would have some kind of reference point while discussing, this topic, approaching civil services examination, right? A plan of action. See, from this point onwards, okay, just a moment. Am I not audible online? Is that the case? नहीं, unmute किया है, आपके डिवाइस का voice setting check कर लो. See, yes, I am audible, and henceforth, please understand that if there is problem coming to one person, right, that means there is technical problem on that side, right? If it is to everyone, it is on my side. So check your settings
voice settings and everything, and increase your volume, device का volume, आपका volume नहीं. So that would solve your problem. Okay. All right. So coming back to the topic, approaching civil services examination plan of action. Before I begin, I must tell you that this is very, very important. This is kind of a blueprint, right, that people ask for. And surprising thing for me is they keep on asking for this for next 1 year, which is very wrong. Are you getting this? You must have a clarity right in the beginning as to how you are going to prepare, right? You should not ask for strategy and approach and roadmap and this and that throughout the year. Throughout the year, you are supposed to study. You are supposed to implement that, right? So we will talk about plan of action today. It's not that this is the last day on which we'll be talking about this. Tukaram sir will talk more about it. Take 1 month while reading basic books. You decide your approach. We would assist you in that. But once you do that, you start implementing it. बहुत बार ये होता है कि लोग साल भर यही पूछते रहते हैं, प्लान कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए. स्ट्रेटेजी पे पीएचडी नहीं करनी है. मेनी पीपल उसके ऊपर पीएचडी कर जाते हैं. ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते. That's the basic problem. We must not do it, right? So we would discuss thoroughly a plan of action for this examination. But before doing that, or rather while doing it, you also need to understand the requirements, expectations of the commission. Please understand this. When you apply for an employment, ये तो UPSC itself is a form of employment, right, on the part of government, employment generation for the sake of administration, right? Whatever job you apply for, whether it is private sector or public sector, right, government sector, you need to understand expectations of the employer, isn't it? ये basic है, it's very basic. You need to understand expectation of the employer. So here we need to understand expectations of the commission. Okay. And commission has outlined its expectations. Rather, every year they do so in notification. Every year UPSC comes up with a notification. Prelim examination का declaration जो होता है ना कि कब होगा, that comes in notification. If suppose examination this year is in June, 5th June को है, तो December, January में roughly in that time period notification comes. It is pretty detailed document. उसमें कई सारी चीजें होती हैं. And we need to understand expectations of the commission from that document. So what we have done, obviously there is something that we should have our own plan, right, in our mind. But at the same time, we should keep in mind what commission expects, right? So one source is notification, other source is something that we have in our hand, syllabus. Third source is previous year question papers, right? So all these things enable us to come up with a plan of action. Let us talk about all these things elaborately. So I would first share with all of you what all things we are going to discuss today. And please don't take it lightly. That is in front of you. First, we will talk about what is this examination. In short, I know that many of you know it and you are looking forward to something else. वो होता है ना कि structure पता है, आगे का बताओ, है ना, ठीक. So don't worry, I will do that. Second, comprehending nature of the examination. See, एक बात जो हमेशा बताई जाती है, which has become a cliche now, that this is toughest examination in India. पता है ना? Yes or no? आपको पता है और फिर भी आप यहाँ पे आए हो. I really appreciate your courage. आपको पता नहीं है and then you are here. That is horrible. Joke था. Don't take it seriously. बात ये है, yes, it is one of the very tough examinations, right? In the world, rather, India is the toughest. And the toughness is not in terms of how difficult questions are asked, right? It is in terms of the ratio, how many appear and how many get through. So don't worry about that, right? But yes, there is intense competition. There is intense competition, right? Doesn't matter how difficult challenge or the task you take up, right? First stage is to understand the nature of the challenge. सबसे पहले क्या समझना पड़ता है? What that challenge is all about, right? So you take any example. अभी IPL चल रहा है, cricket matches का लो, football match, anything, any sports, any activity that you do. First thing is you should understand what that challenge is all about. Suppose you have a match with some other team. आप क्या करते हो? You study the strength and weakness of the team, right? Strategies according to their players
आजकल तो बहुत ज्यादा हुआ है, they sit down and they take the footage of different players of the opposing team वगैरह वगैरह. It is about understanding every player, right, of that team and then deciding strategy and executing it. So similar kind of exercise we are supposed to undertake here, right? So we need to first understand nature of this examination, comprehending nature of examination. I hope you understand the difference between understanding and comprehending, right? And comprehending is thorough understanding, isn't it? Many times you get the feel that we understood something, but वो comprehension नहीं होता. And जो paper है CSAT का, उसमें there is something called reading comprehension. Comprehension means you understand that passage thoroughly, and that is why देखो एक problem क्या होता है in 10th and 12th जो passages आते थे, passages English paper मेरे, right? तो what we used to do, passage पर पढ़ते थे, नीचे questions होते हैं, question में जो keywords है वो लोग ऊपर ढूंढते हैं, किसमें, passage में, और वो पूरा sentence उठा के डाल देते हैं, right? ये नहीं चलेगा यहाँ पे. Problem is ये क्या हो गया, this is like you are just making kind of a correlation and that too many times arbitrary, right? यहाँ पे आप question में जो keywords है, if you try to search that in the passage, you won't get it in the first place. So passage को समझना ठीक से, that is something which is required, and do not think that it is only confined to what is called CSAT paper. Comprehension is required everywhere. Whether you are reading GS paper 1, paper 2, paper 3, paper 4, essay, optional papers. When you read the paper, when you read the question, you understand the question, you comprehend the question, right? And once you comprehend it, you understand different facets of the question. You understand what is the expectation of the question, right? And then you accordingly write. So comprehension is very important. ठीक है? तो यहाँ पे exam के nature को समझना, comprehending nature of the examination, then understanding syllabus. This itself is a task. You are supposed to read multiple times. Plus, there are some reading between the lines, and we would do it. Don't worry. So, syllabus number 4, we would try to understand what is previous year question paper analysis. Previous year question paper. One of the most essential ingredients, right, as part of your beginning of this process. So, reading syllabus, understanding previous year question papers. ये दो बहुत important exercises है, and then you go to the basic concepts, right? Okay, I would do that here. Model एक sample के point of view से. Then sources of the study, something that everybody expects. ठीक है, people come here day one, they want list of books, right? They don't want to understand the examination. We want list of books, right? वही बात करेंगे. We will talk about reference list. Then very essential part, planning, right? How do we plan the entire preparation? Then actual preparation, what kind of approach you are supposed to adopt in the preparation. At the end of it, there is one aspect which COVID has added, that is online mode, and this is hybrid mode. What we are doing is hybrid mode. So those who are online, उनके लिए मैं कुछ चीजें बताऊंगा. If you are not habitual to this, you are not supposed to worry about all these things. The experience is as good as what we see in physical classroom. So we will talk about that as well. Let us begin with the first topic, that is introduction. Okay. So what this examination is all about. If you look at the first statement here in this PPT, slide that is there in front of you, it is challenging, exasperating, and tiring. ऐसे कौन से exams are which go on for a year? The concept of exam for us is exam आता है, हो जाता है, बात खत्म. You get out of it. But here examination goes on for 1 year, right? There are 3 stages of the examination, and you have to go through it. और सबसे problematic बात ये है, if you pass preliminary examination, that itself is an achievement, because you come into thousands from lakhs. Some number of lakh people appear, and some few thousand are shortlisted for mains examination. But उसका कोई certificate नहीं मिलता, और ना ही उससे आपको कोई benefit मिलने वाला है. Tough competition क्या होता है, ये होता है ना. And then if you go to the mains, वहां से फिर you go into 3 times more what is the number of posts. उतने ही लोग, अगर 100 है तो 3,000 something इंटरव्यू के लिए. And unfortunately आप अगर लिस्ट में नहीं आते हो, that is the most horrible situation. And many times we come across such students who are very sincere, but वो ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, but ये challenges है. These are
challenges, right? It's very tiring, very exasperating, challenging. हाँ, इंटरव्यू खत्म, 5 दिन में नेक्स्ट प्रीलिम, राइट? इंटरव्यू का रिजल्ट आया आपका, अगर निगेटिव आया, रोने के लिए भी टाइम नहीं है. Are you getting this? So mental toughness, right? Patience, perseverance is something that is very much needed. हाँ, okay. मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ. आपका जनरेशन थोड़ा सा आगे का है, मैं थोड़ा पीछे का हूँ, राइट? है ना? तो वो सचिन तेंदुलकर वाज द आइकॉन. अब विराट कोहली मैं जानता हूँ. कई सारे प्लेयर्स ये बोलते थे that when Sachin is playing, उसके साथ खेलते समय we can really score. ऐसा क्या बोलता था वो बाकी प्लेयर्स को जो खेल रहे हैं उसके साथ, बैटिंग कर रहे हैं? He used to say one simple thing, hang on. क्या बोलता था? Hang on मतलब don't throw your wicket, stay there. ठीक है, हो सकता है कि 20 बॉल खेले, आपने कोई रन नहीं निकला, बाद में आप 10 बॉल में 20 रन बनाओगे, वो बैलेंस हो जाएगा, but you stay there. Many a times, you know, challenge बड़ा है, there's a big challenge, and we tend to give up. If you give up at one place, you give up everywhere. That becomes a habit. समझ में आ रहा है? You face the challenge, isn't it? और यहाँ पे, yes, it is tiring, exasperating, challenging, but the best things in the world are found only after this process. होता क्या है? We expect a lot and we put in very less efforts. हमको immediately वो जॉब चाहिए जो एक काइंड ऑफ, है ना, पावर का सिंबल है, प्लस प्रेस्टीज है, सेलिब्रिटी बन जाता है अचानक से, मीडिया आ जाता है. We imagine that, right? We want all these things, but are we ready to put in the efforts for that? I'm telling you, doesn't matter how ordinary you are, doesn't matter how extraordinary you are, the moment you get through, you are a celebrity. But can you get something without any kind of efforts? The answer is no. इस एग्जामिनेशन का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट ये जो सेकंड पार्ट देख रहे हो आप, फैसिनेटिंग, एनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग. एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. फैसिनेटिंग, इट इज सो फैसिनेटिंग. एक तो शुरुआत उसकी फैसिनेशन कहाँ होती है? मीडिया से. यस, मीडिया ने हाइप करके रखा है, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड मीडिया टाइम दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए. दिस पार्ट ऑफ द लाइफ, नॉट कंप्लीट लाइफ. फैसिनेटिंग है, नो डाउट अबाउट दैट. वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट? With the government, you have constitutional protection, the job, and the kind of work you do every day, there are new challenges, right? So hota na ki every person who is getting into some kind of a job, you develop some sort of monotony over a period of time. But this is one job, there is no place for monotony. Every time you have new things in front of you. So very fascinating. There's absolutely no doubt about that, right? And you'll be rubbing your shoulders with politicians, and people of India somewhere like politics, isn't it? And those who say I don't like politics, that is the biggest political statement ever, isn't it? So वो एक है that you are in the public, dealing with the people, tremendous respect, power, वो सारी चीजें हैं, right? जो आप चाहते हो करिए. क्या चाहता है इंसान? Money, right? Stability of the job, right? Prestige, power. All these things are there, right? I am telling you, I don't want to get into paper 4 mode, ethics and integrity. There is a difficult trade-off. I know many people think about this कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा. ऐसा नहीं करना चाहिए. The moment you get into it, your power is gone. Then you become puppet in the hands of politicians. Either you seek power or you seek money, and it's better to seek power to do something in society. समझ में आ रहा है? I'm telling you clearly. वो prestige नहीं रहता, कुछ नहीं रहता. You'll be exhausted. उसका कोई satisfaction नहीं है. और secondly, a person who is IAS, IPS, IFS, you have enough salary. आपको घर मिलता है, गाड़ी, डीजल, पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है देखने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ इट. ड्राइवर है, उसका मेंटेन सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है. आपका पैसा तो वैसा का वैसा है वो अकाउंट में. सो यू फोकस ऑन वर्क. ये क्यों किया गया पता है क्या? देयर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन बाय दैट पर्सन, एंड दैट्स व्हाई ऑल द अदर थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. उसके बाद भी अगर आपको बहुत, दिस इज ग्रीड, राइट? यूजलेस ग्रीड. एंड आपको घर मिलने वाले रिटायरमेंट तक, उसके बाद क्या होता है? इंसान रिटायरमेंट की लाइफ इज डिफरेंट, राइट? मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप काफी यंग हो. सो वेरी फैसिनेटिंग जॉब, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट. एंड देन एनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग. ओके, यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड द होल जर्नी इटसेल्फ इज एनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग. जॉब तो है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये जो प्रोसेस है ना, जर्नी, यू एंड अप
having this some kind of enlightenment and empowerment. Empowerment कहां से होता है बताओ मुझे? Only thing that you can that can give you lasting enlightenment and empowerment is knowledge. समझ में आ रहा है? इसका significance अभी समझ में नहीं आएगा. Just give 6 months, and 6 months down the line we'll again talk about this. How knowledge is empowering, enlightening, right? You will have a different feel altogether, right? So far जो भी education हुआ है हमारा, we are not educated. We are literate at best. And don't worry, I will prove this in the classroom. जब classroom शुरू हो जाएगा, right? इसलिए प्रूव नहीं करना है कि आपको कुछ नीचे दिखाना है. बात ये है, my work is to show you mirror. सबसे पहला step, you know, in terms of preparation success is to know where you stand. ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे हो और क्या required हो, तभी समझ में आता है. If you have some kind of hollow या फिर wrong perception that your level is here but actually यहाँ पे है, तो ये gap अभी के भर नहीं पाओगे कभी. First thing is to know where you stand, right? Then the preparation starts. इस बात को हमें समझ लेना. तो ये जो है, that would give you idea as to what you are supposed to do, and when you do that, it's a different sense of empowerment because of the knowledge, right? Okay. Different subjects that we studied during our schooling, वही subject पढ़ने but with some different kind of a depth and maturity, right? For the sake of education. आप सोच रहे होंगे education नहीं सर एग्जाम के लिए पढ़ना है, वही आप करते आए हो अब तक, right? I know that process. What we do generally is we prepare for an examination, first standard, second, third, fourth, 9th, 10th, 11th, 12th. एग्जाम हॉल में लेके जाते हैं सब कुछ भर के दिमाग में, राइट? एक बार पेपर पे उतार दिया ना, यू आर लाइक मुझे नहीं चाहिए ये सब, ये भी हो गया ना, पीपल डिलीट करते हैं उसको. देयर आर सम पीपल वेरी क्लेवर, दे गो फॉर शिफ्ट डिलीट, दे डोंट वांट टू फाइंड इट इन रिसाइकल बिन एज वेल. और कुछ एडवांस लोग हैं वो फॉर्मेट कर लेते हैं, एंड फॉर्मेटेड हेड्स कम हियर. और ये फॉल्ट आपका नहीं है, पूरा एजुकेशन सिस्टम का भी है. एंड दैट इज द चैलेंज. क्या चैलेंज है बताओ मुझे? चैलेंज ये है दैट, देखो, आई नो एवरी वन ऑफ यू नोज दैट यू बी एडवाइज्ड टू रीड एनसीईआरटी बुक्स, इजंट इट? है ना? 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोला जाता है, इतने सालों में आज तक एक बार भी नहीं हुआ बोलने की बात की रीड एनसीईआरटी बुक्स 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Nobody stands up in the classroom says, sir, are you insulting us? Graduate 6th का पढ़ो मतलब कोई नहीं बोलता, क्योंकि अंदर से सभी को पता होता है. कुछ याद नहीं, छोड़ो 6th में क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं है ना. I'm telling you, there are many questions in prelims which directly come from NCERT. अगर हमने पहले ही पढ़ा है तो फिर से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? Think about this. Because आपने बस एग्जाम के लिए किया था, but that doesn't work here. Reason being, एग्जाम चलता है 1 साल के लिए, हाँ, और कम से कम 1.5-2 साल का प्रिपरेशन चाहिए. नंबर 3, 2 दिन में 4 पेपर खत्म होते हैं. जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4. डे 1 मॉर्निंग सेशन जीएस पेपर 1, आफ्टरनून सेशन जीएस पेपर 2. डे 2 मॉर्निंग सेशन जीएस पेपर 3, आफ्टरनून जीएस पेपर 4. ये 4 पेपर 4 सब्जेक्ट नहीं है. It's a long list of subjects. Paper 1 itself contains history, Indian society and geography. इसकी थोड़ा अंदर जाओगे, हिस्ट्री, उसमें आर्ट एंड कल्चर, इसमें पूरा एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल मूवमेंट, राइट? एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट? देन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. 4 कंपोनेंट तो ऐसे ही बन गए, अपने आप में अलग सब्जेक्ट्स है. देन इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी. आप ही सोचो कितने सब्जेक्ट्स है. उसके बाद फिर पॉलिटी, गवर्नेंस, डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? इंटरनेशनल रिलेशंस. पेपर 3 वो तो खिचड़ी है पूरी. इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट. मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि यूपीएससी सोच रहा था कि 2 पेपर डिजाइन हो चुके हैं, तीसरा बनाना है,
जो भी बचे सब डाल दो। बट ऐसा नहीं है। ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड वेयर द मोमेंट यू थिंक अबाउट योर जॉब। आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे डिजास्टर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पता है क्या? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ही हैज टू मोबिलाइज एवरीथिंग। सो डू यू इवन हैव एनी आइडिया ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? ऐसे नहीं डाला है रे आपको परेशान करने के लिए। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई वुड टॉक मोर अबाउट दिस इन आवर लेक्चर्स, डोंट वरी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप इस तरह से पढ़ो कि मुझे जॉब में रिक्वायर्ड है, इसके लिए तो पढ़ना है, नो डाउट अबाउट दैट, एग्जाम के लिए। बट जब इस तरह से पढ़ोगे, दैट वुड बी लास्टिंग इन योर हेड, ये रहेगा आपके साथ। यू कैन अप्लाई दैट इन द जॉब। सो नेवर थिंक इन अ शॉर्ट साइटेड मैनर, ठीक है? और ये हेल्प करेगा आपको व्हेन यू स्टडी फॉर नॉलेज। आप जानते हो ना कि नॉलेज रहता है, इंफॉर्मेशन इवेपोरेट होता है, इंफॉर्मेशन इवेपोरेट्स, नॉलेज रिमेन्स। अच्छा, मैं आपको सिंपल सवाल पूछता हूं, टेल मी द शेप ऑफ अर्थ। जियोइड, हाँ, या फिर स्फीयर, व्हाटएवर, गोल है, सिंपल आंसर, राइट ना? ये रट्टा मारा था आपने, क्यों करना था ना सुबह 5 बजे उठ के, अर्थ इज जॉइड, अर्थ इज जॉइड। या फिर आपने 10th पहले पास किया था कि 12th? ये रट्टा मारा था, देन हाउ डू यू रिमेंबर इट? और मरने से पहले पूछूंगा ना आपको, मरने से पहले बोल के जाओगे कि पहले 10th पास किया था, देन ऑफ। हाउ डज दैट रिमेन विथ यू? इन दोनों के पीछे का मैं आपको एक रीजन बता देता हूं, एंड दैट वुड हेल्प यू इमेंसली इन टर्म्स ऑफ स्टडी, ठीक है? पहला जो एग्जांपल था, व्हेन यू रीड अबाउट दैट, राइट, अर्थ इज जियोइड, स्फेरिकल, राइट, उसी बुक में फोटो होता है उसका, या फिर स्कूल में वो देखा है ना आपने मॉडल उसका। नाउ द मोमेंट यू वेरीफाई समथिंग, इट रिमेन्स विथ यू। व्हेन यू वेरीफाई समथिंग, इट रिमेन, merely reading doesn't help you, उसको वेरीफाई करो सोसाइटी में, तो आपको वो जो चीज पढ़ रहे हो दैट रिमेन्स इन द हेड फॉर लॉन्गर टाइम। दूसरी बात, ये 10th एंड 12th का आपने जिया है, वो यू लिव्ड इट, एंड लाइफ इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग, राइट, है ना? तो आप बोलोगे ना पहले 10th ही होगा ना सर, 12th कैसे होगा? ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? दैट कम्स बिकॉज यू लिव्ड इट एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। तो कई चीजें ऐसी होती है लॉजिक से यू कैन अंडरस्टैंड, इवन इफ यू डोंट नो इट, राइट, यू कैन इमीडिएटली से कि लॉजिक ये है इसलिए यही आंसर होगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं दिस ईयर प्रीलिम का क्या होता है। इफ आई कनेक्ट टू द एग्जामिनेशन, यू विल फाइंड द रिलेवेंस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो दिस ईयर एक स्टेटमेंट आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अब ऐसे मत बोलना कि सर ये अचानक शुरू हो गया आपका ना। एग्जांपल के तौर पे, व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक वाज रेनिंग सुल्तान, राइट, देयर वाज इन्वेजन ऑफ तिमूर। ये स्टेटमेंट था। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इवन इफ यू डोंट नो कि तिमूर इन्वेजन कब हुआ, आपको इतना दिमाग में चाहिए कि व्हेनेवर देयर वाज अ स्ट्रांग एम्परर इन इंडिया, फॉरेन इन्वेजन्स वर रिपल्स्ड। समझ में आ रहा है? वो अंदर नहीं आ पाए। तिमूर तो अंदर आके दिल्ली लूट रहा था 2 महीने के लिए, ठीक है? तो बात यह है, when Muhammad bin Tughlaq was there is no possibility because he was very strong emperor. Whether you know it or not, if you know this thumb rule logic, you would say that this is wrong statement. आपका एक क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम में। So there are many subjects like history, polity as well. सर सारे आर्टिकल्स बाय हार्ट करने हैं क्या? ये सवाल आते हैं। सर वो डेट्स याद रखने हैं क्या? कुछ मत करो, यू जस्ट लर्न, ठीक है? लर्निंग प्रोसेस चाहिए रे, दैट वुड हेल्प यू इमेंसली। अपने आप वो चीजें याद रहेंगी इफ यू एस्टैब्लिश लॉजिक, यू वेरीफाई इट, यू अंडरस्टैंड इट। गेटिंग दिस? ये थोड़ा याद रखना, मैं रिपीट नहीं करूंगा उधर अप्रोच में। सो इट इज फैसिनेटिंग, एनलाइटनिंग एंड एम्पावरिंग, राइट? ओके, देन challenges. See, I just said it is a tough challenge, but उसमें क्या चैलेंज है एग्जैक्टली? ठीक है, देखो, सबसे पहले जो मैं बात कर चुका हूं, three staged year long process that requires a lot of patience. There's no doubt about that, right? Number 2, multiplicity of subjects. मैंने अभी बताया आपको, there are multiple subjects, और 2 दिन में ये सारे पेपर्स खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आएगी, the biggest problem that you face is how to revise. इतने शॉर्ट स्पैन में how to revise, उसका आंसर क्या है? We will talk about that, don't worry. Then vast scope of syllabus.
let me clarify one thing very clearly, that there is no rocket science here. आप सिलेबस पूरा पढ़ लो, ठीक से पढ़ा होगा आपने, राइट? ऐसा है क्या कि देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी के रॉकेट कैसे बनाना, उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करो, ऐसा कोई सवाल आया? एक बात समझ लो, these are very basic subjects, very basic subjects, right? Simple ones, isn't it? फिर भी पढ़ना पड़ता है, मतलब हमारा एजुकेशन कैसे हुआ है? You think on this line, ठीक? यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा है, an educated person does not require special efforts. अब इसमें दो ही चीजें हो सकती है, या तो यूपीएससी झूठ बोल रहा है, राइट, या फिर हम एजुकेटेड नहीं है. And second is the right thing, right, somewhere. And education system का भी दोष है, मैं उधर नहीं जा रहा, but please try to understand this. यहाँ पे कोई ऐसा rocket science नहीं है. Whole thing becomes challenging because it is vast. मैं आपको सीधा बता दूं कि कम से कम 2 डिग्री का सिलेबस, 2 या 3 डिग्री का सिलेबस. आप कोई भी अगर डिग्री करते हो, कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3-4, राइट? यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है? लॉन्ग लिस्ट है, कम से कम 2 डिग्री का. And the thing is, you have to study that in 1.5 year. So it requires a lot of dedication. ये बड़ा चैलेंज है. स्कोप सिलेबस का वास्ट है, तो उसके ऊपर एक होल्ड कंट्रोल डेवलप करना is something that is quite challenging, but it can be done, क्योंकि हम जानते हैं कि हम डिग्री में क्या करते हैं. अच्छा, आपने वो मूवी देखी है क्या, भाग मिल्खा भाग? उसमें नहीं क्या वो बोलता है कि कितना दौड़ना है, कोच को पूछता है कितना दौड़ना है, इतना छोटा ग्राउंड है, कितना दौड़ना है, इसको तो मैं इस पे इसके 20 राउंड लगा लूं, है ना? तो कोच बोलता है कि एक ही राउंड करना है, उसमें 20 राउंड का जोर लगाना है. गेटिंग दिस? अरे 100 मीटर्स का रेस ले, इज लाइक आई कैन रन फॉर किलोमीटर्स. ये 100 मीटर क्या है? बात ये नहीं है, यू कैन रन फॉर किलोमीटर्स, जितने किलोमीटर दौड़ सकते हो वो एक दौड़ में 100 मीटर के. So you have to concentrate your energy of the entire degree and put in here. और वो हमको भी करना पड़ता है इधर, एक साल में सिलेबस खत्म नहीं करना है क्या, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ, डोंट वरी, अभी डरना मत है इसको. डोंट डेवलप एनी काइंड ऑफ फियर फैक्टर, दिस इज वेरी बेसिक. देन डाइवर्स रेफरेंस बास्केट, बिकॉज देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड देयर इज अ करंट डायमेंशन टू इट. ये दो चीजें क्या करती हैं? दे मेक यू गो फॉर नंबर ऑफ बुक्स. यू आर सपोज्ड टू रीड नंबर ऑफ बुक्स, तो रेफरेंस बास्केट बड़ा बन जाता है. आपको एक हैबिट होनी चाहिए, you should have that habit that you would read multiple books but limited number of books. Multiple as in every subject के लिए at least 1-2 books, and that itself becomes a very long list, right? So diverse reference subject, then critical dynamic nature of questions, and this has been the real challenge. Nature of question changes over a period of time. I tell you one thing, in one of the batches a student came and said, sir, I'm solving previous year questions. I said, good. तो उसने दिखाया 1970 का यूपीएससी का पेपर निकाल के सॉल्व कर रहा है. मैंने बोला तू छोड़, मैं भी पैदा नहीं हुआ था. कहाँ जा रहा है पीछे? Where are you going? एक लिमिट होना चाहिए, मतलब आप क्या कर रहे हो? What are you doing? एक तो 1970, 80, 90 से लेकर के आज तक there has been such a huge change in terms of nature of question. It is meaningless exercise to go back so much in the past. Absolutely meaningless, I'm telling you. You're wasting time, energy, everything. You focus on last 10 year questions, at the most 15 year questions, not more than that. एक तो 2011 और 13 में फॉर्मेट चेंज हुआ है प्रीलिम एंड मेंस का, प्लस क्वेश्चंस आर डिफरेंट. एंड दिस इयर्स ऐसे पेपर वाज इन अ वे a shock, at least to those who were in the examination hall. अरे पेपर बाहर से देखना वो अलग होता है कि हाँ ठीक है, एग्जाम में सीधा सामने आता है ना. जनरली ऐसे में 2 सेक्शंस होते हैं, वन इज फिलोसॉफिकल, अदर इज करंट बेस्ड. इस बार सारे फिलोसॉफिकल. पीपल आर लाइक करना क्या एग्जैक्टली, यू नो. एंड दोज हु हैड दैट, देखो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बेंट ऑफ माइंड, एप्टीट्यूड. दोज पीपल हु आर हैप्पी विद द फिलोसॉफिकल टॉपिक, दे आर सुपर हैप्पी. बट दोज हु आर बैंकिंग ऑन व्हाट, जैसे एक फिलोसॉफिकल लिखना है उसके बाद फिर मेरा ऐसे आ रहा है, तो उनके लिए टफ था.
So UPSC throws surprises at you. Those people who try to find pattern in UPSC, they are at biggest fault. इसके ऊपर इतने सवाल आते हैं, मैं इतना करूंगा, नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर ज्यादा सवाल आएंगे या फिर एक भी नहीं आएगा. बात यह है, what kind of questions are to be asked on what part of the syllabus. ये कमीशन के हाथ में, आपके हाथ में नहीं. आपके हाथ में जो चीजें बुक करो, you read everything that is there in the syllabus, right, and you be prepared for it. So let UPSC decide what type of questions are to be asked on what topic, right. तो हाँ, एक काम करना पड़ेगा, you are supposed to understand nature of the question. और इसीलिए वो बुकलेट में जो है ना, की टर्म्स जो दिए ना इसमें, this booklet, important terms in questions, that is important. ये carefully read करना and multiple times. Okay. So critical dynamic nature of questions. Critical क्यों बोला? Because this word itself appears many times, and even if it does not appear, they expect your critical thinking to reflect in the answer. आपका critical thinking answer में आना चाहिए. Then need of rigorous planning and peculiar set of skills. In the beginning itself, we talked about certain important requirements like, you know, patience, perseverance, hard work, isn't it? But certain skills are also required. What are the skills? Reading comprehension itself is a skill. Are you getting this? Not just about a passage, but a question as well, right? दूसरी बात, understanding different facets of the question. Third, gathering your thoughts, right? And then organizing your answer, and then expressing it properly. उसको बोलते हैं articulation. So 3-4 things I talked about are all the skills which are required in the answer writing itself. Then there are other skills, how you present yourself verbally in the interviews, right? So lots of skills are required. I'm not going to talk about all of them immediately. We will do that as we move forward in lectures. But yes, a peculiar set of skills is required as far as this examination is concerned. These are challenges, no doubt about that, right? Lekin, most important thing, it doesn't matter, you can go on listing challenges in this examination, but yes, complexity and difficulty of this examination can be dealt with. It is complex examination, it is difficult examination, but it can be dealt with. How? Appropriate plan of study and preparation in terms of following elemental phases. What is elemental phases? Significant phases. Prelim, mains and interviews. And there's one question everywhere people ask, sir, पहले prelim की preparation करो कि पहले mains की करो? और ये कभी-कभी 6 महीने तक लोग 1 साल तक पूछते रहते हैं मुझे आके. You know, if you have read syllabus carefully of both prelims and mains, you would not find any topic in preliminary syllabus which is not there in main syllabus. Are you getting this? So to put it mathematically, syllabus of prelims is subset of syllabus of mains, right? अलग कुछ नहीं है, दोनों सेम है. अलग क्या है? Orientation, nature of the examination. आपने कोई एक टॉपिक ले लिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यू आर रीडिंग इट, उसके ऊपर एक 10 मार्कर आ सकता है मेंस में, या फिर उसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है. तो मेरा एक सिंपल आंसर है. लोग पूछते हैं, सर पहले प्रीलिम के लिए पढ़ूं कि पहले मेंस के लिए पढ़ूं? माय आंसर इज पहले पढ़. यू स्टडी फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड, उसके बाद उसके ऊपर एमसीक्यू आएगा तो सॉल्व कर पाएगा, 10 मार्कर आए तो लिख पाएगा. 6 महीने तो वही पूछ रहा है, पहले प्रीलिम की पहले मेंस. सिंपल सी बात. मेंस का सिलेबस ले लो, उसमें सब कुछ है, वो पढ़ो. वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी, डोंट वरी. सो यस, अप्रोप्रिएट प्लान. अप्रोप्रिएट इसीलिए बिकॉज मेनी टाइम्स यू गो रॉन्ग इन ऑल दिस थिंकिंग, राइट? सो अप्रोप्रिएट प्लान ऑफ स्टडी एंड प्रिपरेशन. प्लान बनाया, प्लान पेपर पे, दैट मेक्स नो सेंस. इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू योर प्रिपरेशन in real action in terms of following elemental phases of the examination. Okay, I will talk more elaborately about this going forward. Now, ye thoda we'll go through quickly this part because we know it actually. We'll quickly go through it. So UPSC preliminary examination, जो अलग अलग elemental phases है, important phases. पहला prelim है. Objective type क्या आते हैं? MCQs, multiple choice questions. Question है, you are given choice A, B, C, D. And you have to choose more correct answer. ऐसे भी होता है कि that there are 2 answers which are correct, but more correct answer को choose करना पड़ता है, right?
So that is where it becomes a little bit challenging, right? Then there is 1/3 negative marking, so no random guess work. There is negative marking, right? So keeping in view these two things, बाकी और बहुत चीजें आप जानते हो. There are 100 questions and 80 questions in paper 2. 100 questions in terms of time वो काफी challenging है. उनको read करना and then answer करना. Questions are many times difficult. Just to make things clear or to put them in context, last year prelim का जो cut off था, it was 92 out of 200. आपको अजीब नहीं लगता? जिनको इतना अप्रिशिएट किया जाता है कि एग्जाम पास कर गया मतलब टैलेंटेड है, राइट, है ना? उन सभी लोगों का कट ऑफ कितना था? लेस देन 50%. अगर आपको लेस देन 50% मार्क मिले तो घर में क्या होता है? आरती उतारी जाती है. बट यहाँ पे तो आप प्रीलिम पास कर रहे हो. बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस? टफनेस ऑफ द एग्जामिनेशन. मेनी अ टाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं, sometimes it becomes difficult for us to answer, but that is fair enough, part and parcel of the game. यहाँ पे आपको प्रीलिम का स्कोर काउंट नहीं होने वाला, ये क्वालिफाइंग है, दिमाग में रखो. Those who have that habit of I would solve every question, they are in trouble. और कभी कभी ईगो का जो सवाल बना देते हैं उसको कि एग्जाम में मुझे सवाल नहीं आ रहा मतलब नहीं आता, इट्स ओके. एक हाथ बाउंसर आते हैं, छोड़ना पड़ता है उसको, राइट? प्रीलिम का नेचर अलग है, वहां पे a different skill set is required, right? A quite different skill set. It's about calculating things. क्या सही है, क्या गलत है. If I know it, I'll go for it. If I can reduce to the two options, I'll go for it. If I don't know anything about it, I'll leave it. I'll skip it. Right? तो ये अपने आप में एक अलग चैलेंज है, because there is negative marking coming in. Requirements of the study, keeping in view this nature of prelims: clarity, sharpness, precision in understand. You may not understand this sentence as of now, but once you start preparing and once you look at prelim papers, after some level of preparation, you would understand what kind of precision is required here. Many a times it so happens that you know the topic जिसके ऊपर सवाल आया, फिर भी आप गलत कर जाते हो. That is because आपने पढ़ा है लेकिन उस precision के साथ नहीं पढ़ा है जो कि required. You know the topic, right? लेकिन उसकी डिटेल्स के ऊपर सवाल आया. आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? करंट अफेयर्स में कई सारी चीजें आती है, isn't it? तो करंट अफेयर पे जो आता है हम पढ़ते हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट दीस डेज. व्हाट कम्स इन न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, उसके बारे में और क्या निकाल सकते हो आप? व्हाट एल्स यू कैन गेट बेस्ड ऑन दैट? वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम का एक लिस्ट होता है यूनेस्को का, राइट? दे डिक्लेयर डिफरेंट साइट्स एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. रिसेंटली डोलावीरा नाम का जो एक साइट है इंडिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसको डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज साइट. उसके ऊपर सवाल ये नहीं आया which of the following sites were recently declared as world heritage sites. सवाल क्या आया? डोलावीरा के फीचर्स के ऊपर आया. क्या क्या मिला वहां पे? So you have to go a little bit beyond what is obvious. जो obvious दिखता है ना, उसके थोड़ा सा आगे जाकर के. And once you develop that habit, right, it becomes very easy. But हाँ, वो करना पड़ेगा. थोड़ा सा सर्च करना, little bit going ahead of what is very obvious and there in front of you. So if you do that, it becomes easy. Otherwise, it is very tough. So number one, clarity, sharpness and precision. हर चीज डोलावीरा है या फिर कोई भी टॉपिक आया है तो उसके बारे में I should know everything. And that everything is never like a huge book, right? डोलावीरा है, उसके कितने फीचर्स होंगे at the most? 5-6. एक जगह पे लिख लो, that becomes your short note. Revise it. इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो उतना डिफिकल्ट नहीं है. But in the first lecture, when you look at the things for the first time, it may look like very challenging and difficult to do. मैं नहीं कर सकता, ये sentiment develop होना, it's natural. But get over it, because once you start doing it, it becomes really easy. ठीक है? Then wider reading, good grasp or technical informative aspects of subjects. There are different subjects in prelims, right? ये सब कुछ चाहिए. Wider reading, as I said, it is not sufficient to read only what is coming in front of you. थोड़ा सा you go for widening the scope of that reading. थोड़ा सा wide करो, and that would really help you in terms of answering questions. Good grasp over technical and informative aspects. Many times सवाल आते हैं जहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे, suppose there is a question on some constitutional body, right? या फिर parliamentary committee. या आप पढ़ोगे पॉलिटी में आगे जाकर.
कभी कभी सवाल ये आएगा कि XYZ पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें कितने राज्यसभा के मेंबर्स है, कितने लोकसभा के मेंबर्स है, बताओ। प्योरली फैक्ट बेस्ड, प्योरली फैक्ट बेस्ड। इसके भी तरीके होते हैं, हाउ टू हैंडल इट। यू प्रिपेयर द टेबल। मैं आपको सिंपल एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये जो प्योर फैक्चुअल चीजें होती है ना, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज उसके टेबल्स बनाओ, ट्री डायग्राम एंड टेबल। आई वाज वेरी बैड एट रिमेंबरिंग थिंग्स, ठीक। सो आई हैड ए लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल बंच हुआ था उसका। एग्जाम 9 बजे, राइट। तो एटलीस्ट वन डे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मॉर्निंग के 3 घंटा ही देखना है बस। गो थ्रू व्हाट टेबल्स यू प्रिपेयर, राइट, है ना। बहुत बार ऐसे हुआ है कि, एंड अगेन एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले तक देखता था। एक बार तो ऐसे हुआ कि जो देखा लास्ट में ने वही आया फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स लाइक वर्चुअल कॉपी, isn't it? But again, you can do this only when you have revised that bunch multiple times as part of test series, right? So always remember this. Widen करो, लेकिन उसको crisp भी करो, short करो, so you can revise at the last moment. ये सब possible है, हाँ। चाहे जितना बड़ा information, facts, figures, you can actually reduce it to smaller size and you can revise it. Then add current dimension to everything. Now, interesting thing. People say that there is no current dimension to history. तो ये क्या था डोलावीरा? Getting this? ठीक है, हिस्ट्री वो है जो पास्ट में हुआ है, राइट? Yes, I understand. But there are certain things which are happening today which are linked to history. किसी एक इवेंट को 100 साल कंप्लीट हो गए, किसी गवर्नमेंट ने कोई एक कोई प्रोग्राम रखा किसी लीडर की कमेमोरेशन में, तो उससे सवाल आएंगे. So there is a current dimension to history as well. बाकी सब तो है ही, no doubt about that, right? But yes, किसी को कम होता है, understand, but there is a current dimension. When you do that, देखो suddenly धोलावीरा पे सवाल क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि there are 2000 हड़प्पन साइट्स. इंडस वैली, सिंधु संस्कृति के कितने साइट्स है? 2000. तो अगर आप ये सोच रहे हो, because there was a question on Indus site, I would by heart all 2000, पगला जाओगे, you'll go mad. Clever प्लानिंग रे, मतलब आप समझो ना क्या क्या सवाल आ रहा है. धोलावीरा करंट में था इसलिए उसके ऊपर आया. सो द मोमेंट यू ऐड दैट करंट डायमेंशन, उसके दो फायदे हैं. वन, यू आर गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम करंट डायरेक्टली. नंबर टू, दैट लिमिट्स योर सिलेबस टू 1.5 year, right? So that's how that current dimension is important here. Then extensive as well as intensive study, right? A prerequisite. When you talk about extensive, it talks about scope. When you talk about intensive, it talks about depth of understanding. ये दोनों जरूरी है. A certain level of depth and vast scope is something that is required in the study. Then revision and rigorous practice of basic H, very very basic. You practice as many MCQs as possible. That would tell you what mistakes you commit generally. And then revision. जो मैंने बताया आपको कि लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करोगे, लास्ट मोमेंट पे तभी रिवाइज कर सकते हो जब वो चीज कम से कम 20 बार पहले रिवाइज हो चुकी है. एंड फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशन आप कम से कम 20 टेस्ट तो दोगे, मिनिमम 20 टेस्ट, राइट? सो एवरी टेस्ट यू रिवाइज दैट, सो 20 रिविजन्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स. देन मेंस एग्जामिनेशन का नेचर, दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ राइटिंग. हाँ, ठीक है, राइटिंग विद इन प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट एंड स्पेसिफिक नंबर ऑफ मार्क्स के लिए. 10 मार्कर है, कितना वर्ड लिमिट है उतना लिखना पड़ेगा आपको. एंड यूपीएससी थ्रो सरप्राइजेस. एक 2013 में फॉर्मेट चेंज हुआ 4 जीएस पेपर्स. डू यू नो कितने क्वेश्चन आए थे 2013 में? 25. एवरी क्वेश्चन 10 मार्कर. उसके बाद फॉर्मेट बदला, 12.5 के 20 क्वेश्चंस. उसके फिर से फॉर्मेट बदला. नाउ इट इज initial 10 questions 10 marker, next 10 questions 15 marker. You have to change the strategy run time in the examination hall. ये जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, लोग क्या करते हैं पता है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं ऐसे ही आएगा, ऐसा नहीं होता. यू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस. जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि हर क्वेश्चन इज 12.5, सो मैं कुछ नहीं देखो सीधा लिखना शुरू कर दूंगा, एंड दैट पर्सन स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन सॉल्विंग इनिशियल 10 क्वेश्चंस, and that too with a more word limit, and there is a crunch for 15 markers.
तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, गो फॉर 50 मार्कर्स फर्स्ट एंड देन टू 10 मार्क। एक आध 10 मार्कर ठीक से नहीं लिखा चलेगा, 50 मार्कर नहीं लिखा मतलब यू आर इन लॉस। सो यू रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। राइटिंग का एग्जामिनेशन है तो पढ़ो वर्ड लिमिट क्या है, मार्क्स कितने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। Yes, it is quite challenging to write 20 questions in 3 hours. It gets down to what? Hardly 8 to 9 minutes per question. उसमें क्वेश्चन को समझना, आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज करना, उसको लिखना, आर्टिकुलेशन ठीक से रहना, राइट? All these things are to be done in those 8 to 9 minutes. And those of you who are thinking that एग्जाम एक बार पूरा लिखने के बाद मैं रिवाइज भी करना चाहता हूं मेरे आंसर्स, तो आपका टाइम स्लॉट बन जाता है 7 मिनट्स का एट द मोस्ट, नॉट मोर देन दैट, right? So in that sense it is challenging. समझ में आ रहा है? Okay, now considering this nature of mains examination, what we are supposed to do one by one, thorough understanding of the subject, because questions बहुत अलग तरीके से आएंगे, and when we would talk about different subjects starting from tomorrow, we would talk about what type of questions are being asked. So ये पार्ट में अभी उसको डील नहीं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, देन क्या रिक्वायरमेंट है। अभी इतना ही बोलूंगा जो पहले हमने जो टॉपिक मेंशन किया था, क्रिटिकल एंड डायनेमिक नेचर ऑफ क्वेश्चंस, एंड दैट रिक्वायर्स, दैट नेसेसिटेट्स थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से समझना, बिकॉज उस सब्जेक्ट के किस डायमेंशन के ऊपर किस तरह का सवाल आएगा, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, राइट? सो इट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड, एबिलिटी टू प्रेजेंट, आर्टिकुलेट द अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। Thoroughly understand. Next step is articulate, present your argument effectively. ठीक है? कंटेंट दो स्टूडेंट्स का सेम है, एक ने बहुत अच्छे से लिखा है, मार्क्स किसको मिलेंगे? जिसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है वो एलिमिनेट हो गया, उसको छोड़ो। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज टू स्टूडेंट्स हु हैव बोथ हैव अंडरस्टैंडिंग, राइट? बट ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ यू प्रेजेंटेड, आर्टिकुलेशन। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में लिखा है, a good articulation, precise articulation would carry extra marks. So we need to learn that as well. वो कैसे learn कर रहे हैं, we'll talk about it, don't worry. और जो second part है इस point का, according to demand of question. I'm telling you, this is the most neglected, misunderstood part by those students who get through as well. और शायद इसीलिए कट ऑफ नीचे आता है, लोग जो पूछा है वो आंसर नहीं करते हैं। मुझे तो लगता है पीपल गो इन द एग्जामिनेशन हॉल लाइक मुझे जो पता है मैं वही लिखूंगा, आप जो पूछ रहे मैटर नहीं करता। दिस इज हॉरिबल, राइट? जो पूछा है वो लिखो ना। सो ये भी आपको रिगरसली करना पड़ेगा। अंडरलाइन दैट वर्ड जो पूछा गया, एग्जामिन, कमेंट, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, अंडरलाइन करो उसको। तो क्या पूछ रहे सवाल वही लिखो, दैट वुड कैरी मोर मार्क्स, क्लियर, राइट? ये हर साल we do this for those people who have qualified for the mains. को बताना पड़ता है कि आप जो लिख रहे हो कंटेंट है, लेकिन जो पूछा गया है उस तरह से अरेंज नहीं किया उसको। So understanding on one hand, on the other hand articulation, both things are very very important. Then third, each answer should be well thought and sharply, precisely organized piece of argument. आप जो लिख रहे हो ना, ऐसे नहीं कि कुछ तो मन में आया लिख दिया। There has to be some logical flow. Whatever you wrote must, देखो, the moment I read it, evaluator कोई भी उसको पता चलना चाहिए कि जो लिखा है ना, there is a thought behind it. क्वेश्चन को नीचे समझ के the answer has been written down, articulated in proper manner. That is the requirement. Many a times I'll tell you, people इतना vaguely शुरू करते हैं ना, 10 मार्कर है, कुछ पूछा है तो बैकग्राउंड बताएंगे, किसने पूछा? 10 मार्कर है, 150 वर्ड में लिखना है, शुरू हो जाओ ना। You directly hit the bullseye. Are you getting this? Gradually, when we would have sessions with you, answer writing, we would talk more about this. But people start with very vague kind of introductions, very very vague kind of introductions. Mood off होता है रे चेक करने वाले का immediately. क्या पूछा है, क्या लिखा है, ऐसे होता है, पता है क्या? ऐसे भी अगर है तो जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर लिखना है आपको, वेग नहीं। I am telling you, go to the notification of UPSC, उसमें पढ़ो आप, उसमें लिखा है, keep your writing very close to the subject and write content होना चाहिए। Many a times, you know, one thing that I have come across is मैं जब बोलता हूँ ना कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसी से शुरू करो इंट्रोडक्शन, तो लोग क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स आके, सर वो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो बाकी क्या लिखेंगे?
मतलब आपके पास कंटेंट नहीं है। देखो डॉक्टर के पास जाते हो, सिम्टम बताने के बाद डॉक्टर समझ जाते क्या हुआ, तो भी अंडरस्टैंड इसके पास कंटेंट ही नहीं। और जब कंटेंट नहीं होता ना तो आप कुछ कुछ लिखने लगते हो उसको बढ़ाने के लिए। ये सब हम कर चुके हैं ग्रेजुएशन तक, और यही करके पास हुए बाय द वे। बट यहाँ पे नहीं चलेगा। देयर इज इंटेंस कंपटीशन, देयर इज इंटेंस कंपटीशन, यू हैव टू फाइट फॉर एवरी मार्क दैट यू ऑन हियर। सो थोड़ा सीरियस तरीके से कंटेंट बनाओ, राइट। पहले रखो आपके पास। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइसिस, बैड क्राइसिस एंड स्वीट क्राइसिस। बैड क्राइसिस में कभी नहीं होना चाहिए। बैड क्राइसिस क्या है? क्वेश्चन है, पता नहीं क्या लिखना है, बैड क्राइसिस। स्वीट क्राइसिस, आई नो अ लॉट, आई डोंट नो हाउ टू राइट इन द वर्ड लिमिट, ये स्वीट क्राइसिस है। ठीक है, तो पहले स्वीट क्राइसिस की तैयारी करो, मतलब हैव दैट कंटेंट, रीड। वाइड रीडिंग समझ में आया, राइट? इन डेप्थ रीडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, वो आपको कंटेंट देगा। एट द मोमेंट यू हैव कंटेंट, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि सवाल कुछ भी आने दो, मेरे पास कंटेंट है। एंड देन टेस्ट सीरीज के थ्रू यू स्टार्ट डेवलपिंग दैट स्किल। कौन सा स्किल? लिखना वही है, इन अ क्रिस्प मैनर, इन अ प्रिसाइज मैनर। दैट विल हैपन एज पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू गो बियॉन्ड द ऑब्वियस, लिटरल एंड टेक्सचुअल मीनिंग। जो सामने लिखा है उतना ही नहीं रे, उसके ऊपर आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। इंडियन सोसाइटी नाम का टॉपिक है, आपने बुक ले लिया आपने, तो लिखा होता है उधर, कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट? तो ये पढ़ने के बाद आपने बुक रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा है क्या। हैव आई एवर कम अक्रॉस द कास्ट इन माय लाइफ? सोचो ना उसके ऊपर, राइट? हम जानते हैं कि बिगिनिंग उसी से है और एंड भी उसी से है। वो आता है ना लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, रिलीजन एंड कास्ट बोथ, राइट? दुनिया में कास्ट कहीं नहीं है, वो बस इंडिया में है। वी ओनली हैव यू नो दैट फीचर विच इज यूनिक। ठीक है, सो ये समझना पड़ेगा ना कि इंपॉर्टेंट फीचर है वो हमारे कास्ट, हमारे समाज का कास्ट, राइट? तो आप जब वेरीफाई करते हो ना तो आपको उसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड देन द रेस्ट ऑफ थिंग्स फॉलो। देयर इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट, है ना? देयर इज हायरार्की वगैरह वगैरह, यू सी दैट इन फ्रंट ऑफ यू। आप देखो, यहां से आगे आई टेल यू वन थिंग रिपीटेडली, दैट डू नॉट पे मच अटेंशन टू पॉलिटिशियन स्पीचेस। वो आपका सिलेबस नहीं है। यूपीएससी में आके कई बार लोग यही करते रहते हैं, सर केजरीवाल का क्या होगा? आपका सिलेबस है वो। राहुल गांधी का क्या होगा? वो खुद देख लेगा, और नहीं भी देख पाएगा तो आपका टॉपिक है नहीं वो। यू फोकस ऑन योर सिलेबस, आई एम टेलिंग यू, डोंट गो फॉर इट। बट कभी कभी आपको उनके स्पीचेस से कुछ चीजें पता चलती है। राइट नाउ व्हाट इज गोइंग इन महाराष्ट्र हैज गॉट कास्ट डायमेंशन। स्पीचेस ऑफ राज ठाकरे एंड शरद पवार जो देख रहे हो आप, वो क्लियरली कास्ट डायमेंशन है। राज ठाकरे सवाल पूछ रहे हैं, आप अंबेडकर शाहू फुले के बारे में ही क्यों बात करते हैं, अब इनके बारे में क्यों नहीं करते? उनकी ये क्या है सब? दे आर ब्रिंगिंग कास्ट डायमेंशन। तो आप ना ये कैसे पढ़ोगे इसको? दिमाग में इंडियन सोसाइटी रख के। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ, दिस इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो जब इस तरह से कनेक्ट करोगे, यू वोंट फॉरगेट इट। आपको उसके कई सारे डायमेंशन। नाउ द मोमेंट यू से कास्ट, एंड कास्ट ही नहीं है, पॉवर्टी फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट, जो अलग, अर्बनाइजेशन, कोई भी टॉपिक ले लो, हर टॉपिक का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, एंड देयर इज सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस इन दिस मैनर, डिफरेंट फैसेट्स, थरो अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर कुछ भी सवाल आ रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, इफ आई टेक अप दैट टॉपिक पॉवर्टी, and if I start studying in this manner, what is the background to poverty in India that you get in history, right? British rule, unki economic policies, thorough exploitation, a legacy of poverty, right, which is lingering for a long time. Population, there are multiple reasons. मैं बस एक बात बता रहा हूँ। तो historical background. दूसरा aspect, what, देखो, the concept of poverty itself is economic concept. So what is economics behind it? How do we decide poverty? Poverty line कैसे decide होता है? किसके क्या criteria है? वो सारे aspects कहाँ आएंगे? इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। सोशल एस्पेक्ट, यू टॉक अबाउट सोशल रिपरकशंस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के सोशल रिपरकशंस, इंपैक्ट्स क्या है, राइट? पॉलिटिकल एस्पेक्ट, व्हाट इज गवर्नमेंट डन सो फार, राइट? एंड इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग, स्टिल पॉवर्टी रिमेन्स, व्हाई?
एंड व्हाट कैन बी डन इन फ्यूचर टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ये इतने पार्ट करोगे ना, यूपीएससी को जो चाहे पूछ लेने दो, यू आर गुड टू गो। लेट कम इन हिस्ट्री, पेपर 1. In Indian society, social aspect, you are prepared for that. Let come in paper 2 in terms of why poverty persists, in terms of suggest suitable measures, आपने किया सब कुछ हो, right? Let come in paper 3 in terms of economics. Let come in essay. ऐसे पढ़ोगे ना, essay content ready है रे आपका, with the flow. ऐसे बता दिया मैंने, poverty के वजह से ऐसे आया, आपको historical background पता है, उसका introduction बनाओ, और इंट्रोडक्शन में ही बोल दो दैट पॉवर्टी हैज गॉट मल्टीपल एस्पेक्ट्स, देन डिस्कस ईच एस्पेक्ट, तो हर पैराग्राफ बन रहा है आपका, एंड देन प्रोवाइड द कंक्लूजन, दैट्स इट, फेंक दो उसको। द वे यू स्टडी, यू नो, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आप अगर स्कैटर्ड तरीके से पढ़ रहे हो ना, इट मेक्स नो सेंस एंड यू वुड फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन एग्जामिनेशन हॉल। But the moment you understand the demand of the examination, demand of the questions, it becomes very easy, and if you devise your plan of action accordingly. Okay, okay. So yes, very important. Well thought out answer तभी आता है when you have this kind of preparation. Understand needs to be go beyond obvious literal. वही बात बता रहा था मैं कि जो obvious है उसके आगे चले जाओ and try to understand it. मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ये होता है that going beyond क्या होता है। आप यम लक्ष्मीकांत पढ़ते हो पॉलिटी के लिए, उसमें कई सारे डिटेल्स है, गवर्नर के बारे में कई सारे डिटेल्स। क्वेश्चन ये आएगा, रिसेंटली द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बिकम कंट्रोवर्शियल, इलस्ट्रेट। जब इलस्ट्रेट बोला जाता है, यू हैव टू गिव एग्जांपल्स, वो भी करंट, रिसेंटली बोला, ऐसे नहीं कि पुराना कुछ बोल दिया। समझ में आ रहा है आपको? सो यू हैव टू गो बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस इन द बुक एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट अफेयर्स। और कई बार क्या होता है कि न्यूज आता है, गवर्नर ने कुछ बोल दिया, उद्धव ठाकरे रिप्लाई, ये आपका कंटेंट नहीं है। आपका कंटेंट आता है ओपिनियन पेज के ऊपर। क्या है वहां पे? एक आर्टिकल आता है एक्सप्लेनिंग व्हाट, कि क्या सही है क्या गलत है, दैट इज योर कंटेंट। सो गो बियॉन्ड व्हाट इज ऑब्वियस, न्यूज नहीं, आर्टिकल्स, एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, तो वो सीधा कंटेंट आप लिखोगे आंसर्स में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिख रहा है, जो लिटरल है, जो टेक्सचुअल है, उसके आगे जाकर के आप समझो उस टॉपिक को। अंडरस्टैंडिंग नीड्स एनालिटिकल डायमेंशंस। इफ यू लुक एट की टर्म्स इन द क्वेश्चन, द बुकलेट दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, अलग अलग की टर्म्स देखो, एक्सपेक्टेशन इज क्वाइट डिफरेंट, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। आई वांटेड टू गो थ्रू इट आफ्टर दिस लेक्चर। सो गो थ्रू ईच टर्म, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट, यू वुड इजीली अंडरस्टैंड दैट ये एनालिटिकल डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे एक्सपेक्ट यू टू एनालाइज, राइट? जैसे कि मैंने अभी बताया, अलग अलग टॉपिक्स, पॉवर्टी है, कास्ट है, अर्बनाइजेशन है, यू टेक एनी टॉपिक, उसका एनालिसिस क्या है आपके पास, राइट? यस, आई अंडरस्टैंड। जब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि थॉट्स होने चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, तो आर वी सम काइंड ऑफ, यू नो, डॉक्टरेट स्टूडेंट? नहीं। तो हमारा थॉट डेवलप होगा क्या एक साल में? नहीं होता रहे एक साल में। बात यह है, आपके थॉट्स मतलब न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, उसी को आपके शब्दों में लिखना है। हमको यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट नहीं करने वाला। इट इज अबाउट क्लेवरली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज टू बी रिटन। समझ में आ रहा है? इट इज अबाउट डेवलपिंग दैट स्किल। हाँ, ये मत समझना कि यहाँ बैठ के आप इतना रिसर्च करोगे कि आपके नए थॉट्स आएंगे। उनके भी नहीं आते जो पीएचडी करते हैं, तो छोड़ ही दो। इसको ऐसे मत लेना कि हाँ मुझे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है बगैर, नहीं, वो ग्रेजुअली हो जाएगा। कैसा थॉट प्रोसेस? थिंकिंग अबाउट समथिंग, अंडरस्टैंडिंग इट इन मल्टीपल डायमेंशंस, एनालिसिस करना उसको, ये इनफ है, एंड दैट वुड हेल्प यू इमेंसली इन सॉल्विंग पेपर्स। नाउ एज वी टॉक्ड अबाउट दिस, यहाँ पे दो टॉपिक जो है टू लिंक इट, गोइंग बियॉन्ड ऑब्वियस लिटरल, analytical dimensions, and then interlinking conventional part with current one. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, conventional part क्या है? What is governor's office? This is conventional, right? वो appointed है, किससे appoint होता है, tenure क्या होता है, how is removed, right? What are the functions of the governor? As a constitutional head उसकी क्या duties है, वगैरह वगैरह. This is conventional part. लेकिन जो सवाल आया था, you have to connect that conventional understanding to what is happening in the current affairs. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग कन्वेंशनल विद द करंट। इसकी हैबिट होनी चाहिए,
You should have habit of it over a period of time in 1 year. Then ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग. प्रोस्पेक्ट मतलब व्हाट इज कमिंग इन फ्यूचर. प्रोस्पेक्ट, रिट्रोस्पेक्ट पीछे देख के, प्रोस्पेक्ट आगे देख के, राइट. ओके, गोइंग इनटू द फ्यूचर. प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने वो सवाल, मैं 1-2 सवाल लिए, मैंने उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं so that you are not confused, right? So the question on poverty that we talked about, if government has done so much of things, so many of things so far, why poverty persists, and suggest suitable measures. तो ये जो होता है suggest suitable measures, going into the future what government is supposed to do, इस तरह के सवाल आते हैं. ये हो गया प्रोस्पेक्टिव. और उसमें प्रिस्क्रिप्टिव भी है. आप सजेशन दे रहे हो, मतलब प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि क्या करना चाहिए. So that dimension is also there. देखो, कभी कभी होता है कि एनालाइज, यू एनालाइज इट. कभी कभी ये बोला जाता है सजेस्ट सुटेबल मेजर्स, सुटेबल पॉलिसी. सो दिस इज अनदर डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव. आगे जाकर के क्या करना चाहिए, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, राइट. सो वी हैव टू प्रिपेयर इन दोज टर्म्स. चलो, ये बहुत डिफिकल्ट है क्या, बताता हूं मैं. आई वुड गिव दिस एग्जांपल इन द क्लासरूम एज वेल. बाद में आपने वो मूवी देखी जॉली एलएलबी 1 टू बी आई है 1. मूवी देखने के बाद, चलो मूवी में कोई ये नहीं सोचता बैठ के मेरे पास सिलेबस है, मूवी में क्या क्या आ रहा है सिलेबस, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया. एंजॉय करो मूवी. एंजॉय करने के बाद बाहर आए तो कभी सोचा आपने ये रियलिटी है क्या? ये जो दिखाया गया, इज दैट द रियलिटी ऑफ इंडियन जुडिशरी? अगर है तो हॉरिबल है, नहीं है क्या? इजंट इट हॉरिबल? अरे मूवी देखिए ना आपने. और दूसरी बात, कभी एक मूवी आई थी दामिनी नाम की, सनी देओल की, 2.5 किलो का हाथ. वो मूवी जब आई थी ना, वहां से लेकर के जॉली एलबी तक कम से कम 10-15 साल हो चुके हैं. उस मूवी में फेमस डायलॉग था सनी देओल का. क्या डायलॉग था? तारीख पे तारीख, ये बोलता है ना वो, है ना. नहीं, सीरियस मैटर है, हंसो मत. तो वो तारीख पे तारीख मतलब जस्टिस इज गेटिंग डिलेड. तो जॉली कौन सा अलग बोल रहा है 15 साल के बाद? जॉली क्या बोल रहा है कि जो दूसरा लॉयर है राजपाल, उसको अगली तारीख दो, आपने दी है तो उसने लैंड क्रूजर का ट्रक बनाया है, एक और तारीख दोगे तो उसका ट्रेन बनाएगा. डायलॉग अलग है बट द क्रक्स इज सेम. तो एक थॉट नहीं आता क्या कि जुडिशरी में इंप्रूवमेंट जरूरी नहीं है क्या बाहर आने के बाद? और एक रियलिटी है that Jolly LB case was nothing but Land Cruiser hit and run case. Salman Khan, the criminal who did not get punishment, very clearly. Right? वो तो hypocrite है बड़ा. पहले killing human and then being human. Hypocrisy. और आप टी-शर्ट पहन के घूम रहे, अजीब है इंडियन सोसाइटी. एनीवेज, तो अगर ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना है? देखो, ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है. Judicial reforms is need of the hour in India. Suggest suitable reforms. तो मूवी खत्म होने के बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसके लिए करना क्या है, राइट. आप जुडिशियल एक्सपर्ट तो हो नहीं, जिसने पीएचडी किया हो जूरिस्प्रूडेंस में या फिर 20 साल का एक्सपीरियंस हो, कुछ नहीं है. तो क्या करना है? यू गो फॉर अ सोर्स व्हिच टेल्स यू द रिफॉर्म्स. नोट निकालो, रखो उसको, बात खत्म. तो जॉली एलबी मूवी ने आपका एक टॉपिक प्रिपेयर करके दिया. अगर सवाल आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, मैं सीधा बता रहा हूं, मूवी इमेजिन कर करके आई कैन राइट दी प्रॉब्लम्स, बस उसका वर्डिंग ठीक होना चाहिए. यू शुड नो हाउ टू राइट, दैट्स इट. तो अलग अलग चीजें कैन हेल्प यू एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट थिंग्स, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट? स्टडी, कीपिंग इन माइंड सिलेबस पॉइंट्स. सिलेबस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो प्रोस्पेक्टिव प्रिस्क्रिप्टिव थिंकिंग को आप डेवलप कर सकते हो इस तरह से. इट्स नॉट दैट यू आर सपोज्ड टू कम हियर एंड do some research paper and come up with new, altogether new kind of suggestions. No, there are people who are doing research. You just read it, which comes in the newspaper, which comes in different journals, right? That is sufficient. Okay. So in short, in a nutshell, what is required is this, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, acquiring, developing, enhancing knowledge about every component, and to express it sharply. Every component इसको complete करो of सिलेबस. एवरी कंपोनेंट ऑफ सिलेबस, उसको ठीक से समझना, उसको डेवलप करना, एनहांस करना नॉलेज को, एंड देन ये दूसरा रिक्वायरमेंट
बस नॉलेज नहीं, you should know the art of writing because the examination is of writing, means examination. Okay, reading syllabus very important. The first thing that we are supposed to do is this. आपको syllabus की copy मिली है, so read it 3-4 times at least. Read syllabus carefully at least 3-4 times. Okay, and our faculty members would discuss syllabus of respective subjects, right? And you insist on that. Okay. Tomorrow we have history conduct lecture, so I'll be conducting that. We will talk about in detail कि syllabus क्या है, उसको कैसे समझना है हमने, right? आपको वहां समझ में आया कि syllabus कैसे समझना है, उसका example आ रहा है. So I won't spend much time on this. Tomorrow we shall discuss about history. What you're supposed to do is understand different sections, components, chapters in syllabus. Syllabus में क्या होता है? Okay, मैं थोड़ा बता देता हूँ जो मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, ठीक है. So paper 1 में there is syllabus called history of India and Indian national movement. मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ. Indian national movement जो था, freedom struggle, रे, wasn't it part of history of India? तो अलग से क्यों लिखा? रहने दो, समझो इस बात को पहले. तो सिलेबस को ठीक से पढ़ना मतलब ये, ऐसा क्यों किया है बताओ. UPSC wants you to emphasize on Indian national movement, which means more questions will come on this part. कहते का, you understand this? तो सिलेबस को ठीक से समझना, उसका हर सेक्शन, हर कंपोनेंट, चैप्टर्स, right? So you look at the section, look at the components of it, and then search for those chapters in the relevant books. Getting this? That is understanding syllabus. ठीक से समझना syllabus को. पढ़ना अलग बात है, अच्छा ये है क्या वो है क्या, ऐसे नहीं रे. Get down seriously and हर subject का understand it thoroughly. Okay, and that is a guiding framework. I'm coming to it. It is clearly a guiding framework which will help you in every aspect of preparation. UPSC preparation is nothing but all these things which are listed here. Preparing a plan, right? Syllabus will help you prepare a plan, because the moment you read syllabus carefully, you have idea of what all things are to be done. ये दूसरा step है. After knowing every component, how do I place it in my timetable? तो पहले understand the components, then choosing a reference list based on syllabus. You understand what is to be learned. I am aware of the fact that there are questions in the chat room. I would take them up once I finish my lecture. So please wait for some time. So choosing reference list, syllabus के basis पे आप books choose करोगे, right? Number 3, reading newspapers and journals. You start with newspapers, and people say that I read newspapers, I understand it. Many a times you don't. You get only that illusionary feeling that you understand newspaper. Okay, okay. I'll tell you what happens. न्यूज़पेपर किसके लिए पता है क्या? न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं ना, they assume that the reader is educated. Back to the same point, and we are not. Right? For example, कोई आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिक्स के ऊपर और वहां पे लिख दिया, because of the COVID situation, right? Government spending has increased, and this may lead to fiscal deficit, right? And which may in turn lead to revenue deficit because there is drop in revenue. ठीक. अब इसमें जो भी आया है ना, हमको कुछ नहीं पता एक्चुअली एग्जैक्टली फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, वी डोंट नो, लेकिन लगता है पता चला. वी अंडरस्टूड, यू डिड नॉट. अब वहां पे ऐसे नहीं होता पेपर में. हाँ, आर्टिकल में ब्रैकेट में लिखा है उस फिस्कल डेफिसिट के सामने, गो टू द लास्ट पेज, रेफर द ग्लॉसरी and understand the term. They assume that you know it. So serious newspaper reading requires some kind of education of the mind, right? So इसीलिए syllabus को पहले समझना, NCERT की books पढ़ना, basic concept को समझना, and then going back to newspapers, and that reading becomes meaningful. और फिर बार बार लोग पूछते हैं कि पेपर में क्या पढ़ना है, पेपर में क्या पढ़ना है, ये मैं क्यों बताऊं? Am I UPSC? UPSC खुद बता रहा है ना आपको, सिलेबस रखो दिमाग में और पढ़ो. Yes, I would help you, right, in terms of identifying
write things and how to do it. That I can do. So for example, there is a topic called international relations. कई बार लोग आयर आयर बोलते हैं, उसको यहाँ पे बोला जाता है, बट ये रियल सेंस में फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है and not IR as such. Basic thing that you would understand in terms of syllabus is every syllabus point is India centric. Every syllabus point is India centric. तो सिंपल आपके लिए क्राइटेरिया बनता है कि IR के जो भी आर्टिकल्स आएंगे न्यूज़पेपर में, you would read only those articles which are relevant to India, connected to India, influencing India. Are you getting this? So slowly you would develop that. For every subject, what is to be read, what is not to be read. Are you getting this? And in UPSC it is more important to know what is not to be read, because that becomes a garbage. Already बहुत कुछ पढ़ना है, फिर वो it becomes infinite, right? Okay. So syllabus helps you in this sense as well. And then syllabus helps you in previous year question paper analysis. थोड़ा रुक जाओ. I would first explain what is previous year question paper analysis, and then we would try to understand how syllabus helps us. So PYQ, previous year questions, papers के analysis. इसमें दो है, prelim and mains. We know that very well. Prelim का आप 2011 से करोगे, mains का आप 2013 से करोगे. Because going beyond 2011 makes no sense. The format was different. There was a paper of optional subject in prelims. पुराने format में दो papers कैसे थे? Paper 1 optional, paper 2 GS. So आज तो एक ही optional है, पहले दो choose करने पड़ते थे, right? So go by the latest format. What is the latest format? जो 11 शुरू हुआ 2011 से. Paper 1 general studies, paper 2 general studies 2, which is called CSAT, Civil Services Aptitude Test. तो जो भी paper analysis करोगे, question paper analysis, it has to begin with 2011 for prelims and 2013 for mains up to the present. जो भी है 2020, 2021 up to the present. Then question paper analysis का मतलब क्या? What is the meaning of it? Many a time people in a very wrong manner give you some kind of a diagram. ऐसा कुछ देंगे आपको, इतने सवाल इस पे आए, इतने इस पे, अरे वो नेक्स्ट ईयर ये इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा. ये एनालिसिस नहीं है, इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? What is this? Do you know this? This is data. Pie charts, graphs, क्या देते हैं आपको? Data, not analysis. समझ में आता है क्या? 99% people don't even understand what is analysis. Forget about doing it. This is data, and people are happy with this. ये नहीं है रे एनालिसिस. ठीक है, तो एनालिसिस में क्या आना चाहिए? ठीक है, देखो पेपर कौन से पेपर है? जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऑप्शनल 1, 2, ऐसे ये पेपर्स है आपके, तो वो सामने रखो. सब्जेक्ट, बिकॉज जीएस पेपर 1, the moment you talk about that, you have 3 subjects: history, society and geography. So talk about subject, then section. जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसके अंदर यू कैन मेक मोर सेक्शंस. एंड देन टॉपिक चैप्टर, किसके ऊपर सवाल है. व्हेन यू लुक एट दिस, फिर से सवाल आते हैं कैसे करें. आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड ना. हाँ, दिस वन. थोड़ा रुक जाओ. सो दैट इज द फॉर्मेट. मेथड क्या है? मेथड इनिशियली इन जनरल बिफोर प्रिपरेशन, मतलब what you would do now immediately, you read the booklets, syllabus पढ़ो 3-4 बार. First task is to read syllabus carefully 3-4 times. Second thing, you go for previous year question paper analysis right now, right? And you would do it again after having some kind of reading, because in the first attempt you may not have complete understanding of questions. After reading the syllabus to some extent, after the preparation, when you revisit your previous year question paper analysis, that becomes all the more clear to you. Initially नहीं होगा, फिर भी वो करना है. क्यों करना है? As a guiding framework, right? And then you would revisit again those questions in terms of understanding them thoroughly. ये सारी चीजें मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, you would understand them 6 months down the line. ठीक है, but अभी इतना ही समझो, जो बोला गया करो blindly. Sometimes it's good to follow blindly. ठीक है. Sometimes, not always. Okay, when you are in the initial phase. So in general, before preparation, then
वंस ए सब्जेक्ट टॉपिक इज टेकन अप, तो होता क्या है, मैंने जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बना लिया, मेरे पास सारे सवाल है, ठीक है, एंड देन मैंने टॉपिक खत्म किया, एंड देन आई वेंट बैक टू माय टेबल, मैंने देखा कि इस टॉपिक पे कितने सवाल आए। इससे क्या होगा पता है क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब बार बार ये करोगे, व्हेन यू डू दिस रिपीटेडली, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू नो द क्वेश्चंस, एंड दैट मस्ट हैपन। जब तक दिमाग में क्वेश्चन नहीं बैठेंगे ना, आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। डेविएशन अगर नहीं होना है ना, यू डू दिस at any cost, multiple times do this, and that would give you some kind of framework in your head that would keep you on track. समझ में आ रहा है? Okay. Then after completion of teaching and study of chapter, teaching खत्म हुआ उस टॉपिक का, चैप्टर खत्म हुआ आपका पढ़ के, then you go back again and look at the questions. ठीक है? Now this is what you are supposed to do, and ये after some months, right? आपके पास ये भी डेवलप होना चाहिए, अगर सवाल ये आया है तो और कैसा सवाल आ सकता है, राइट? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे अगेन कम, आर यू गेटिंग दिस? दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। फॉर एग्जांपल, एक सवाल आया था यूपीएससी में हिस्ट्री का, 18th सेंचुरी इंडिया प्रेजेंट्स यू ए फ्रैगमेंटेड पॉलिटिकल पिक्चर, एक्सप्लेन। वर्डिंग थोड़ा चेंज है, गट्टा नहीं मारा मैंने तो फिर क्रक्स ऑफ इट। अब ये सवाल आया है किसके ऊपर, 18th सेंचुरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन आपने ये सोचना है, यही सवाल अलग तरीके से आ सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अकाउंट फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ 18th सेंचुरी। समझ में आ रहा है? मतलब गिव रीजंस। सो द मोमेंट आई लुक्ड एट द क्वेश्चन व्हिच अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, उसी एरिया के ऊपर और किस तरह के सवाल बन सकते हैं, राइट? सो दैट हैज टू बी डेवलप्ड अगेन, विजुअलाइजिंग प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस ऑन दैट एरिया। And once you have your own question bank, right, that is the best way in terms of preparation. तो सवाल कुछ भी आने दो, you are ready. तो कई बार तो ऐसे होता है, if you have this kind of preparation, you know, जब एग्जाम हॉल में जाओगे, I know this question, I know this question, ये तो आना ही था. That should be the level of preparation, right? उससे क्या होता है कि वो आपका जो टाइम क्रंच है कि 20 सवाल लिखने 3 घंटे में, वो कम हो जाएगा, because you broadly know the question. ठीक है, थोड़ा बहुत वर्डिंग इधर उधर हो सकता है, and because you know the question, you have the control for that question because you developed it. तो उसमें टाइम नहीं जाएगा, अब सवाल आया है मैं इस पे क्या लिखूं, याद नहीं आ रहा है, कहां से लेके आऊं, इसमें टाइम चला जाता है, वो नहीं होना चाहिए in the mains examination, right? Okay, so this is the method and this is the sample. You just pay attention here. ऊपर क्या लिखा है, GS पेपर 1, ठीक है, that is the paper, और क्या लिखा है, सब्जेक्ट कौन सा, हिस्ट्री. If you look at this entire analysis, in this direction we have years of examination. For mains it starts with 2013, for prelims 2011 up to the present times. In 2019 you can go for 2020, 2021, right? Okay, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो भी है, right? And you would get a specific box, that means 2013 को फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, 2014 को फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एंड लाइकवाइज. समझ में आ रहा है? एंड बाय द वे ये जो क्वेश्चन है काफी बड़ा है, 4 लाइंस का क्वेश्चन है वो, राइट? उसको कैसे लिखा है देखो, समझ में आ रहा है? हाँ, क्रिस्प करके एग्जैक्टली क्या पूछा है, सवाल किसके ऊपर है, संगम लिटरेचर के ऊपर. कोर एरिया फाइंड करो, सवाल किसके ऊपर है, कोर एरिया, राइट? देन सवाल क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, और वो फ्लेवर क्या ऐड किया है, कमेंट. आपके पास सब कुछ है. नाउ जो शुरुआत में बोला था, जीएस पेपर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री, हाँ, सेक्शन एंशिएंट हिस्ट्री, चैप्टर संगम लिटरेचर. गेटिंग दिस क्लैरिटी, राइट? ये सामने जब होगा ना, पूरा जब पेपर, बड़ा पेपर लेना, वो छोटे में नहीं होगा, राइट? होता है ना, पेंटिंग के लिए यूज करते हो वो वाला, और सामने लगा के रखो. एवरी टाइम यू लुक एट दैट, पता होगा अच्छा संगम लिटरेचर पे आया था, उसके बाद एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर आया था, उसके बाद इंडस वैली के ऊपर आया था. समझ में आ रहा है आपको? यू गेटिंग दिस? सो यू हैव ब्रॉड फ्रेमवर्क कि सिलेबस ये है, सवाल किसके ऊपर आया है और किस टाइप के सवाल आया है. You get the complete picture. Merely knowing the number of questions on a topic, ये एनालिसिस है क्या?
हिस्ट्री पे इतने सवाल है, अरे हाँ आए, कैसे सवाल है, किस एरिया पे आए, नेचर क्या है उसका, एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इज एनालिसिस है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होते हैं। लास्ट सो मेनी इयर्स स्टूडेंट्स कम टू मी एंड से सर वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर 2 साल सवाल नहीं है, मैं छोड़ दूं क्या उसको? हाँ छोड़ दो, तो डिसाइड किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। एक तो आप एब्सर्ड सवाल नहीं पूछो, पहली बात। यूपी ऐसे होता है, कह रहे कि आप इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हो और आपने लेग स्पिनर को ऑप्शनल में डाल दिया। सामने वाला टीम जानता है कि आपने लेग स्पिनर आप नहीं खेल सकते, तो क्या लेके आएंगे आपके खिलाफ? लेग स्पिनर लेके आएंगे। यू कैन नॉट डू दिस लाइक दिस, राइट। आपको you should be able to handle fast bowling, outswing, in swing, yorker, spin bowling, leg spin, off spin, top spin, कैरम बॉल, जो भी है उसमें एक बार डिफाइंड है ना सिलेबस, वो पढ़ो ना। और ये होता है, एक साल आपको कोई सवाल नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के, उसके बाद फिर 3 आए, 2 आए, जानते हैं उसका मतलब क्या है? 30 मार्क्स, 45 मार्क्स, एंड इफ यू लूज 45 मार्क्स probably you are out of list. That is the level of competition we have. So each component is to be studied. Do not skip it. Do not go by number of questions. समझो उसको, right? There's a fight for every mark. मैं आपको एक सीधा फैक्ट बता रहा हूं. There are many differences between those who get through and those who don't get through. Right? एक जो हमने ऑब्जर्व किया है over the years, those who get through they solve all 20 questions without failure. और उनका पेपर हाथ में लोगे ना, तो पहला क्वेश्चन जितने अच्छे से लिखा है, 28 क्वेश्चन उतनी ही अच्छे से लिखा होता है। ऐसे नहीं पहला बहुत अच्छा लिखा है, दूसरा अच्छा लिखा, तीसरे में गड़बड़ हो गया, चौथा पर 20वां तो ऐसे मतलब लिख के छोड़ दिया, मतलब टाइम ही नहीं मिला उसको, या फिर पता ही नहीं चला क्या लिखा। गेटिंग दिस? सो गिविंग जस्टिस टू ईच क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस केस, कैन यू अफोर्ड टू लूज एनी क्वेश्चन completely? Answer is no. So never do that. This is previous year question paper analysis. Now, coming to that point, sources of study. ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? फर्स्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. व्हाई? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया. सिंपल रीजन इज इट मेक्स यू कॉन्वर्जेंट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जैसे कि हमने फिजिकल डेफिसिट का एग्जांपल लिया, न्यूज़पेपर रीडिंग, रेफरेंस बुक का रीडिंग, ये करने से पहले दिस इज मस्ट मैंडेटरी. हाँ, questions directly come on the content of NCERT many times, and even if they don't come on the content of NCERT directly, indirectly it helps you understand those reference books, newspapers and everything. मैं आपको clearly बता रहा हूँ, if you skip NCERT and think of reading books, it's a futile exercise. You would end up wasting time. And while reading NCERT books, multiple things are to be kept in mind. First, the content. Second, organization. Third, लैंग्वेज. अब ये क्यों करना है? सिंपल सी बात है, कंटेंट के ऊपर सवाल आते हैं और यूपीएससी ने बोला है कि जिसका आंसर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा और वेल आर्टिकुलेटेड होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. तो यू कैन लर्न ऑल दीज 3 थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी. यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यू कैन लर्न हाउ टू राइट समथिंग. आई एम टेलिंग यू, ये सिंपल सो प्रॉब्लम नहीं है. मेंस एग्जामिनेशन है, क्वालिफाई हो चुका है स्टूडेंट, आके मिलता है, बोलता है सर आंसर लिखना नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करना है, पहले क्या लिखूं, बाद में क्या लिखूं. आपकी जो कमेंट्स है ना कि फ्लो नहीं है आंसर में, लॉजिक नहीं पैराग्राफ में, हाउ डू आई डू इट? लास्ट मोमेंट पे व्हेन एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर, यू आर आस्किंग अबाउट हाउ टू राइट. डिजास्टर नहीं है क्या? इट इज अ डिजास्टर. यू लर्न दैट फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की बुक्स में आप देखो, कोई टॉपिक लिया है ना, देयर इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन देयर इज कंटेंट एंड देयर इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ये कंटेंट की भी अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें लिंक होता है. फर्स्ट पैराग्राफ जहां एंड होता है ना, वो कहीं ना कहीं क्लू छोड़ जाता है नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या. दैट इज कॉल्ड लॉजिकल फ्लो. ये लर्न करने की बात है, पहले पढ़ते पढ़ते उसको समझो एंड देन कम टू राइटिंग. सो कंटेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर टू बी अंडरस्टूड thoroughly. Second, look at how those are organized. Third, learn the language. And when you talk about language, there are 2 things precisely. One is vocabulary and second is sentence construction. So what is required is, if you come across a word in the question paper, right, and if you don't know the meaning of it, you are gone, because एक आध कीवर्ड होता है उससे पूरा क्वेश्चन डिफाइन होता है, and if you're losing it, it's disaster.
right? दूसरी बात, you are writing something, you are struggling for the words. Worst, you have no scope for this year. So throughout the year, NCERT would really help you in terms of building your vocabulary. Even newspapers and standard reference books will also do this. ठीक है? Then sentence construction. आपको थरूर नहीं बनना है. You're not supposed to become Shashi Tharoor. आपको क्या करना है? Simple language, grammatically correct language. That's it. Rather 3 words: simple, grammatically correct and effective. बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा ना तो वो पढ़ने वाला भी बोर होता है ना, कहना क्या चाहते हो. जितना आपको टाइम क्रंच है उतना उसको भी है. जानते हो क्या? There are 20 questions for you in 3 hours. उसके लिए number of question papers to be, answer sheets to be evaluated. इंटरेस्ट कब आता है पता है क्या? सिंपल तरीके से सीधा बोल रहा है कुछ, वेरी गुड, वो पॉजिटिव बन जाता है. यू गेट 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा. वही कंटेंट कॉम्प्लेक्स लिखा है, 2-3 सेंटेंस क्लब करके लिख रहा है, आप लिखे खुदा पढ़े भी होता है ना. इफ यू मेक द इवैल्यूएटर स्ट्रगल फॉर, अब वो स्टूडेंट है नहीं, बड़ा बुक है वो लेके बैठा है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं ना, उसको चेक करना है. तो सिंपल लैंग्वेज, इफेक्टिव लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज, दैट इज सफिशिएंट. डोंट मेक इट ऑर्नामेंटल, right, unnecessarily. So that is what we are supposed to do as far as NCERT is concerned. Then newspapers and journals, clearly Hindu and Express we suggest, Indian Express, right, these 2 newspapers. You begin with any one of them to get the habit of newspaper reading first, and then gradually we would let you know as to what is to be read from both the newspapers. Okay, then journals, you can go for a journal like for example Yojana या फिर कुरुक्षेत्र. गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज ऑलवेज गुड बिकॉज ऑफिशियल डेटा मिलता है आपको, राइट, एंड यू आर गोइंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट. समझ आ रहा है आपको? सो इट्स गुड टू रीड दो जर्नल्स, राइट. देन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स, इसको मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स. इसके लिए 2 घंटे का एक और लेक्चर लगेगा फिर, है ना. सो टुमारो आई वुड टॉक अबाउट रेफरेंस बुक का लिस्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड लाइकवाइज एवरी टीचर विल डू इट फॉर देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. So you would get the book list. Don't worry about that. But standard reference books choose karo. Do not go for, those books which are just for the sake of it publish kiye hote hain. Don't do that. Go for standard reference books. और खुद के notes बनाने, मैं इसकी बात करता हूँ. You will get class notes as well. So this is sufficient study material. Okay. So one bottom line while reading the sources, rather than reading many references, it's always better to read selective books again and again. ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ोगे, right, उतना कंफ्यूज होगे, प्लस you will not be able to recollect it because you did not read multiple times. ठीक है, बट आपने एक बार डिसाइड किया कि इतने बुक्स पढ़ने, वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, that content then gets reflected in the answer. ठीक है, okay. Now प्लानिंग कैसे करना है? See, मेंस में कौन से कंपोनेंट्स दैट यू सपोज टू टेक केयर ऑफ व्हाइल you draw a plan for your preparation. First, general studies. Second, essay. Third, current events. Fourth, optional, and then the last part, answer writing. Right? Okay. One by one. General studies के 4 पेपर है, ठीक है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स. ऐसे उसमें एक फिलोसॉफिकल होता है, एक करंट का, वो चेंज करता रहेगा यूपीएससी, उनके पास छोड़ो. करंट अफेयर्स में हमने अभी देखा कि न्यूज़पेपर एंड एक हाथ जर्नल, राइट. ऑप्शनल सब्जेक्ट वी नो दैट यू हैव टू चूज इट. यहाँ पे डेप्थ होता है काफी ज्यादा, कोई भी ऑप्शन ले लो. एंड देन दिस इज अ डिफरेंट कंपोनेंट. पहले इनके बारे में बात करते हैं. सी, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ. यू मे गो फॉर आइदर डेली प्लान या फिर वीकली प्लान. ठीक है, बहुत बार ये होता है कि स्टूडेंट्स ट्राई टू कोप अप विद व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लासरूम. बोलते हैं कि सर क्लासरूम में जो पढ़ाया है वो तो पढ़ना पड़ेगा इमीडिएटली. ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर 2 प्रोसेसेस. इफ यू रीड बिफोर, यू अंडरस्टैंड मोर इन द क्लासरूम. इफ यू अटेंड द क्लासरूम केयरफुली, राइट, विद अटेंशन, व्हाइल रीडिंग इट हेल्प्स. ये कंप्लेंट करने वाली बात नहीं है. यू नो, सपोज टू कंप्लेन हियर कि सर वो पढ़ाई नहीं, वो लेक्चर आगे जा रहा है, मैं पीछे हूं. होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर क्लासरूम डिस्कशन पहले हुआ है and then you are reading becomes fruitful. If you read it first, then come in the classroom discussion becomes fruitful. It is going to help you both ways. So don't think of it.
let the classroom have its own pace, because हमारे सामने क्या होता है, एक साल में कंप्लीट करना होता है. आपने क्या करना है, you have to devise your own plan, right? So what you do is, first of all, you know, आप डिसाइड करो कि आपके पास कितना समय है. आई एम टेलिंग यू, you require 7 to 8 months or 9 months for mains preparation, right? And then you require 5 to 6 months for prelim preparation. तो ये जो 8-9 months आपके पास है, इसको कैसे डिवाइड करोगे, राइट? है ना? एक बार देख लो how many subjects you are supposed to prepare along with optional subject, right? Then allot number of days, कितने days आप दे सकते हो, right? And then come down to either this planning or this plan. What does that mean? There are students who say that if I go for a subject in the afternoon session, morning session में lecture, afternoon session में एक subject, evening session में दूसरा. Sir, I have problem with this plan because मुझे ना subject change करना अच्छा नहीं लगता. Once I read something, उसमें continuity चाहिए. Those people should go for weekly plan. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर होता है सर, I want change. They should go for daily plan. Are you getting this? Daily planning ये होता है, you divide the day in sessions. Morning session lecture, afternoon session one subject, evening session another subject, right? And you follow it. Those who want continuity in their reading of a particular subject, they can go for weekly plan. How do you do it? You divide your week in, say for example, 4 days and 3 days. अबे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? There's a reason behind that. See, whatever number of days you have, उसमें आप optional और जनरल स्टडीज का पहले प्लान बनाओ. What you do is, मैंने जो डेली प्लान बताया था, आफ्टरनून सेशन एंड इवनिंग सेशन, जहां पे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो आफ्टरनून को दे दो, राइट? है ना? हर एक का अलग हो सकता है, राइट? है ना? और वो बाकी जो बचेगा उसको जीएस को दे दो, बिकॉज आफ्टरनून में डेप्थ रिक्वायर्ड. एंड गुड थिंग इज, अभी आपको फोकस करना है जीएस के ऊपर. ऑप्शनल क्लास शुरू होगा अगस्त में. इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं पढ़ना है ऑप्शनल का, जितना हो सकता है पढ़ लो. I know that सब कुछ समझ में नहीं आएगा, you won't understand everything in optional, right? जितना हो सकता है पढ़ लो. So give less number of hours right now for the optional, as long as classes are not there, right? Once you start understanding it, वो hours बढ़ाओ, और तब तक जितना हो सकता है जीएस खत्म होना चाहिए. रिलीव करो खुद को, राइट? है ना? अगस्त में ऑप्शन शुरू होंगे, राइट? So what you can do is, suppose you choose afternoon session for GS, so you give 6 hours to GS and only 2 hours or 3 hours to optional. सोने से पहले I just want to go through optional, क्या क्या है उसमें देखना. You can do that. So this would really cover a lot of chunk as far as GS is concerned, right? This is about daily plan, those who want change. And you can do this for, you know, weekly plan, right? 4 days GS, 3 days optional, या फिर 5 days GS, 2 days optional. लेकिन एक एक्टिविटी है जो डेली करनी पड़ती है. What is it? Current. इसको आप वीकली नहीं बना सकते, right? You do it daily, right? Okay, so this is your planning. Either you go for daily plan or you go for weekly plan. अब यहाँ पे दो चीजें बचती हैं मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने बताया कि मेंस का अलग, प्रीलिम्स का अलग पढ़ाई नहीं होता है. टॉपिक पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर either there would be MCQ or there would be an answer to be written, right? Okay, so answer writing and MCQ preparation. देखो, people talk about daily answer writing when they come here on day 1. क्या बात कर रहे हो आप? आंसर राइटिंग क्या है पता है क्या? आंसर राइटिंग इज आउटपुट. इनपुट कुछ गया ही नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा? गार्बेज. पीपल कम अप विद आंसर राइटिंग इन डे 1. मैं बोलता मत दो मुझे, डोंट इवन सबमिट, बिकॉज उसके फिर अलग आफ्टर इफेक्ट्स है. यू सबमिट इट, मैं देखूंगा गार्बेज है तो मुझे लिखना पड़ेगा ना गार्बेज है. और मैं बोलता अरे क्या लिखा है तूने, यू आर लाइक मतलब से मुझे कुछ नहीं आता, सो मैं डिप्रेशन में चला गया. मैं क्लिनिक खोलू क्या इधर साइकोलॉजिकल? शुड आई स्टार्ट कंसल्टेशन, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन? अरे ऐसा करते ही क्यों हो जो खुद को ट्रबल में डालते हो? यू रीड फर्स्ट. आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स. रीड, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, मेक माइक्रो नोट्स, एंड ऑन दैट टॉपिक 1 or 2 questions, that too open book test. This is initial preparation, right? Once you complete the syllabus in this manner, go for the test series.
एंड जब आपने प्रीलिम दिया ना, उसके बाद फिर डेली आंसर राइटिंग करो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका पढ़ाई खत्म हुआ है। लोग इधर डेली आंसर राइटिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, एंड देन मेंस के पहले सिलेबस रह जाता है पढ़ने का। हॉरिबल है, कैसा प्लानिंग है। और दूसरी बात, व्हाट इज डेली आंसर राइटिंग, टेल मी। आपने आज एक क्वेश्चन लिखा, आंसर सबमिट किया, तो चेक करने वाले बोलेगा ना सबमिट करो, मैं चेक करता हूं, राइट। दूसरे दिन आंसर लेने जाते हो, दूसरा आंसर देने के साथ, यही तो प्रोसेस है ना, और क्या बताऊं। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा, उसमें जो इनपुट्स मिले, उसको बिना इंप्लीमेंट किए दूसरा आंसर, तो वही इनपुट आने वाले हैं। और अगर मिल भी जाए आपको उसी दिन, तो एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं होता, क्या बात कर रहे हैं। The whole purpose of answer writing is to improve the answer writing, right? Improve the answers. Are you doing it? और आप बस रूटीन कर रहे हो, क्या रिचुअल्स कर रहे हो? वो रिचुअल्स होते हैं ना घर में, यज्ञ वगैरह होता है, वो क्या बोलता है कुछ पता नहीं चलता, राइट। ये रखो, हाँ ये रखो, ऐसा करना है क्या? हा? अरे हर आंसर इंप्रूव होना चाहिए आगे जाकर के। उसके लिए जो इनपुट्स मिले उसके काम करना चाहिए, वर्क ऑन इट एंड मेक श्योर दैट ये इनपुट फिर से नहीं आएंगे, ऐसा आंसर लिखो, राइट। जहां पे आप सामने रखोगे एंड यू वुड राइट आंसर्स, बिकॉज इनिशियली सब कुछ नहीं आएगा। सो डू दैट एंड ग्रेजुअली। फिर आपने कभी कंस्ट्रक्शन देखा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रे, क्या किया जाता है? देयर इज सपोर्ट स्ट्रक्चर, पहले वुडन या फिर स्टील का, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। और बाद में जब वो हार्डन हो जाता है कंक्रीट मटेरियल, उसको निकालते हैं, राइट। बिना सपोर्ट के सीधा कंक्रीट डालते हैं क्या? कैसे पॉसिबल है? तो पहले बुक का सपोर्ट ले लो व्हाइल राइटिंग द आंसर, ग्रेजुअली यू रिमूव इट। बेसिक चीजें है ना, कोई भी फील्ड चूज करो, तो आप जंप क्यों करना चाहते हो? नेवर डू इट। यू स्टडी फर्स्ट, रीड एनसीईआरटी, अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तब तक कुछ मत सोचो। इतना ही फोकस चाहिए कि मुझे हर कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देन रीड दी रेफरेंस बुक्स, एक रीडिंग कंप्लीट करो पहले रेफरेंस बुक्स का, उसके बाद सिलेबस देखो, टॉपिक चूज करो, वो टॉपिक फाइंड करो रेफरेंस बुक में, वो चैप्टर होगा, चैप्टर 2 बार पढ़ो एक ही सिटिंग में, राइट। अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, एंड देन मेक अ माइक्रो नोट उसी सिटिंग में, हो गया। उसके बाद एक आध क्वेश्चन लेके आंसर लो, ये प्रोसेस पहले करो, उसी के बाद वो कंटेंट आएगा, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ कंटेंट। ओके, ये तो बाद में कर ही सकते हो। यू हैव डेडिकेटेड 5 to 6 months फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। इफ योर स्टडी इज कंप्लीट, you can do this multiple number of times. If you do this now and waste time and do not study, the study will remain, right? MCQs will float on it, which makes no sense, right? Okay. Now, we talked about planning. Now, how to prepare? Okay, thoda sa. I have talked about few things already, right? I'll go through quickly all these points. First of all, read from all relevant sources. And the moment I say sources, what are those? NCERT, newspaper and journals, reference books, and class study material. Read all sources. For example, back to the poverty. कोई भी एक टॉपिक ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी टॉपिक। सपोज I start thinking about poverty, right? I'm reading it. मेरे पास poverty के ऊपर एक चैप्टर एनसीईआरटी में है, एक चैप्टर रेफरेंस बुक में है, और दूसरा एक रेफरेंस बुक मैंने रेफर किया, मेरे फ्रेंड ने बोल दिया अभी पढ़ ले, है ना। ये एक होता है यहाँ पे आके, सर मेरे फ्रेंड ने ये बोल दिया, वेरी गुड, एक्सपर्ट है तुम्हारा फ्रेंड। नहीं, जो लोग 10 साल इसमें हैं, राइट, उनके एक्सपीरियंस होते हैं, राइट। किसने क्या किया, कौन कैसे हो गया, उसने क्या स्पेशल एफर्ट डाले थे, फ्रेंड ने बोला तो यहाँ क्यों आया, कंसल्ट करते, उसने ऐसे बोला है सर क्या करूं। अरे आप स्टेबल रहो अपनी जगह पे, लोग कुछ कुछ बोलेंगे, अरे ये बुक पढ़ा क्या तूने। I'll tell you ये कैसे हैंडल करना है। पहले यू डिसाइड वन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक, यू स्टिक टू इट, राइट। उसको जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी का टॉपिक लिया, आई सर्च दैट चैप्टर इन माय रेफरेंस बुक जो मैंने चूज किया, उस चैप्टर को मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ के एक माइक्रो नोट बनाई। नोट ऐसे बनानी है, यू लीव स्पेस, राइट, मार्जिन जिसको बोलते हैं, 1/3, ज्यादा पार्ट छोड़ो। यहाँ पे उसका टाइटल होगा, अलग अलग सब हेडिंग होते हैं, पता है आपको, किसी भी टॉपिक में, राइट। सो फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉवर्टी, राइट, देन अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इकोनॉमिकली, ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के कुछ पॉइंट मैंने लिखे, जगह छोड़ दो, यू लीव सम स्पेस, राइट, एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग।
इस तरह से नोट बनी। एक बात बताओ, और कुछ लिखने वाला है दूसरा कोई? अलग अलग बुक्स हैव सेम कंटेंट मोर और लेस विथ डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड डिफरेंट अरेंजमेंट। एक हाथ दूसरा पॉइंट नया मिलता है। दूसरा बुक जो सजेस्ट किया हुआ है आपको बहुत अच्छा कब लगता है पता है क्या? व्हेन यू डोंट नो अबाउट द टॉपिक। एक बात बताओ, व्हाट इज फोर्स? मराठी सांगू, बल म्हणजे काय? व्हाट इज फोर्स? मैं जानता कोई बता नहीं पाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। है क्या बताना? बता, जल्दी बताओ, टाइम पास नहीं। Anybody who wants to define force? Standard 7th, 8th, I don't know. Acceleration. What is mass and what is acceleration? This is our problem. एक सेकंड रुको, इसके अकेले का नहीं, हर साल मुझे ये आंसर मिले। Did I ask you Newton's second law of motion? ये क्यों बता रहा? और जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछूंगा तो आपने मुझे लॉ बताना है, उसके रिजल्टेंट इक्वेशन के बारे में नहीं पूछा मैंने। What she is telling me is equation. Did I ask the equation? You tell me the law first. अगर बता पाओ तो। ये हुआ है हमारे साथ, बोला गया हम कोर्स हमें मारो रट्टा, उसके ऊपर सम आएगा, उसमें मार्क्स मिलेंगे। Nobody wants to understand it. क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? आप जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना ज्यादा सवाल आएंगे मेरी तरफ से, इसलिए मैंने बोला था कि आंसर मत करो। क्या होता है व्हेन यू डिफाइन समथिंग, उससे काउंटर क्वेश्चंस नहीं बनने चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? आई कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट। फोर्स इज फिजिकल एंटाइटी। पहले तो ये बताओ कि फिजिकल है कि केमिकल है कि बायोलॉजिकल है? फोर्स इज physical entity which changes or tends to change state of an object. ठीक है, इसमें दो पार्ट्स है। फोर्स इज अ फिजिकल एंटाइटी which changes state of an object. ये पहले स्टेडी स्टेट में था, बाद में मोशन में आ गया, राइट? ये फोर्स है। Did I apply the force? Did I apply the force? ये वॉल मूव हुई क्या? And then how to bring that into the definition? Tends to change. समझ में आ रहा है? Force is a physical entity which either changes the state of an object or tends to change it. Change करने की कोशिश करता है, चेंज हो ना हो, लेकिन फोर्स अप्लाई हुआ। पहले केस में वर्क हुआ, दूसरे केस में वर्क नहीं हुआ। बिकॉज वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि आपको? प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमको बोला जाता है force is a physical entity which changes or tends to change state of an object. लिखो, ये पढ़ाना नहीं है। Teacher has to be half actor, right? बच्चों को दिखाओ ना, मैं जोर लगा रहा हूं, वो हिल नहीं रहा है, लेकिन फोर्स लगा है ना मैंने, that is force. Our whole education system was a flaw, right? Isn't it? कैसे पढ़ा रहे हमको? और इसीलिए यहां पे आके पढ़ना पड़ता है फिर से। नहीं तो क्या देखना था, राइट? सीधा अपियर होते ग्रेजुएशन के बाद, IAS at 21. You have to put in the efforts. Are you getting this? Because of this, हाँ? तो जो भी एक बात बताओ, नेक्स्ट थिंग, आई एम कमिंग टू माय टॉपिक। जो मैंने डेफिनेशन बताई, एक बुक में ये डेफिनेशन है, दूसरे में कुछ अलग होना है क्या? पॉसिबल ही नहीं। बस प्रेजेंटेशन अलग होगा, कंटेंट अलग नहीं होता है। अलग अलग बुक लिखने वाले कोई साइंटिस्ट नहीं है, या फिर वो सोशल साइंटिस्ट नहीं है कि कुछ ज्यादा कुछ लेके आएंगे, नया कुछ बताएंगे। एक हाथ दूसरा एडिशनल पॉइंट होता है। जब आपने एक रेफरेंस बुक अच्छे से पढ़ा है ना, द मोमेंट योर फ्रेंड कम्स अप विद द नेक्स्ट बुक, अरे एक अच्छा बुक है मेरे पास, दिखा, यू गो थ्रू इट एंड यू अंडरस्टैंड कंटेंट सेम है, दिस पॉइंट इज नो, एक सेकंड मुझे लिखने दे, लेके जाओ। बट जब 10 बुक लेके बैठते हो ना, कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से शुरू करूं, ये प्रॉब्लम आता है। यू रीड एटलीस्ट वन स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक प्रॉपरली इन दिस मैनर। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा होना चाहिए आपके पास माइक्रो नोट के फॉर्म में। उसके बाद चाहे 1000 बुक आने दो,
यू आर लाइक अरे सेम है, छोड़ो, वो बस यहाँ पे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिया, उधर पहले सोशल लिया, ट्रीटमेंट अलग है, लैंग्वेज अलग, कंटेंट सेम, ये डेवलप होता है ग्रेजुअली, बट यू डू दिस राइट। तो ये तरीका है स्टडी करने का। तो सारे सोर्सेस, अब देखो एक नोट बन गया, दूसरा रेफरेंस बुक में कुछ एडिशनल मिला तो मैंने ऐड कर दिया, जो स्पेस छोड़ी वहां, एनसीईआरटी में कुछ एडिशनल मिल गया तो मैंने ऐड कर दिया। लोग बोलते सर एनसीईआरटी का नोट निकालूं क्या? क्यों? मेरा बेसिक सवाल है, नोट्स क्यों बनाना? मैंने बताया एग्जाम खत्म होती कुछ दिनों में राइट, तो उसमें क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाने। तो एक बात बताओ, एनसीईआरटी का अलग नोट, इस बुक का अलग नोट, इस बुक का अलग नोट, तो आपने किया क्या? 4 सोर्स 4 नोट्स। डिड यू reduce the sources? No. Could you avoid the repetition? No. It's a waste of time. क्या ये? वेस्ट ऑफ टाइम। सभी सोर्सेस का एक नोट, और फिर जब मैं जाऊंगा तो आई वुड हैव ओनली माय नोट, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि सारे सोर्सेज यूज करके कंटेंट लिया। दैट वुड गिव, हाँ मैं ये रिवाइज कर सकता हूँ, सारे बुक्स सर पे ढोके लेके नहीं जा रहे हैं उधर एग्जाम में, it becomes impossible to revise every book. So reduce your sources to single note of every topic. That would help you immensely in terms of last moment revision. Okay. So this is the way you deal with all the sources. Read all the sources. Okay. 3 aspects of comprehending the subjects are to be taken into consideration. कौन से है वो? Concepts, information जिसमें facts and data होता है, right? And current and contemporary events. कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड इट थरोली, थरो अंडरस्टैंडिंग राइट। जैसे कि मैंने फोर्स का बताया, कोई भी सब्जेक्ट लो, हाँ लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, टुमारो आई वुड एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। मोस्टली वी डील विद सोशल साइंसेस हियर, पेपर 3 में साइंस एंड टेक भी है, आई एम नॉट डिनाइंग इट राइट। मेजर प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड इज दे कम अप विद दैट साइंटिफिक एटीट्यूड राइट, है ना। उनके लिए थिंग्स आर आइदर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट राइट, या ऐसा है ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, देयर आर मेनी ग्रे शेड्स इन बिटवीन। मैथमेटिक्स में क्या होता है, 2 + 2 is 4, सोशल साइंस में इट कुड बी 22 और 0, you cannot have a single definition. So for example, for last 2 hours I'm working right, according to science I'm not working क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। शॉकिंग है। सोशल साइंस में यू कैनॉट कम अप विद दैट एटीट्यूड। हाँ, तो थोड़ा यहाँ पे ये समझ लो, देयर विल बी मल्टीपल डेफिनेशंस, मल्टीपल डायमेंशंस कवरिंग इन दोस डेफिनेशंस। साइंस में एक डेफिनेशन होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो बाइनरी नहीं होता 1 और 0, ट्रू और फॉल्स, हियर थिंग्स आर इन शेड्स। तो डायमेंशन समझना, ग्रे एरिया समझना, कभी कभी कंफ्यूजन होता है और वो कंफ्यूजन रहेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजन, नॉट टू सॉल्व इट। जम्मू कश्मीर जब भी पढ़ाता हूं ना, क्लासरूम में फीलिंग ये आता है मुझे कि एवरीबॉडी वांट्स टू सॉल्व द जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम राइट नाउ राइट हियर। 70 साल से प्रॉब्लम है, हमसे कई इंटेलेक्चुअल लोग ट्राई कर चुके हैं, हम क्लासरूम बैठ के इधर सॉल्व करेंगे? आर यू रियली जोकिंग? यू अंडरस्टैंड व्हाई दैट प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स, नंबर 1। नंबर 2, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या। नंबर 3, अब तक क्या एफर्ट्स हुए। नंबर 4, अभी प्रॉब्लम है कि अगर है तो क्या किया जा सकता है। बात खत्म, नो सेंटिमेंटलिज्म। सवाल आया, आंसर लिखो, मसूरी पहुंचो। इधर बैठ के जम्मू कश्मीर पे पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं, करना है तो यूनिवर्सिटी जाओ। गेटिंग दिस, कीप दिस फोकस वेरी क्लियर राइट व्हेन यू स्टडी। कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड फिगर गैदर करना फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, उसको प्रोसेस करना, मतलब जो मैंने अभी बताया कि नोट्स, अच्छा वो भूल गया मैं ये जो नोट मैंने आपको बताया था, ये क्यों छोड़ना है मैंने नोट बनाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा साइट के जो फीचर्स हैं, बाद में पेपर में देखा कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे इमीडिएटली एरो करके करंट का उसका जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। सिंगल नोट ऑफ ऑल सोर्सेस, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, एंड पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। मैं जानता हूं कि 2 घंटा हो चुका है, गेट हैबिचुअल टू इट।
समझ में आ रहा है? You require intense kind of hard work here. So उसका preparation अभी करो, ठीक है? Don't give me indication that time is up. Time is never up till you reach Mussoorie. ठीक है? Okay. So एक बार आपने ठीक से पढ़ लिया, मैंने जो बताया आपको, माइक्रो नोट्स बनाओ, रिवाइज करें, then आंसर राइटिंग. I have talked about this. This is the process. Don't jump. Search for creativity and novelty. जब आप ये करते हो ना, पूरा प्रोसेस फॉलो किया ना, अब क्या होता है, पढ़ा तो है मैंने पूरा, आई हैव रेड कंप्लीटली, माइक्रो नोट बनाया है, आंसर भी लिखे हैं. देन आई थिंक कि मैं एक्स फैक्टर क्या ऐड कर सकता हूं, व्हाट कुड बी द एडिशन. तो उसके लिए कंसल्ट द टीचर्स, गो फॉर वाइडर रीडिंग. ये नेक्स्ट स्टेज है. पहला स्टेज ही कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ दिस थिंग्स दैट एक्स फैक्टर वुड गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. एंड वी वुड टॉक अबाउट दैट ग्रेजुअली व्हेन वी गो फॉरवर्ड. आई वुड डिस्कस मॉडल आंसर विद यू. उसमें एक्स फैक्टर क्या है, हमने क्या किया, ये सारी बातें करेंगे. Then focus on building critical thinking ability. I told you, right? When you read something, you relate to the society, what is happening in society, and think critically. And that is done by many a times article लिखने वाले जो लोग होते हैं newspaper में. So learn that gradually. उन्हीं से ले लो वो, and that is your critical thinking. So critical thinking का मतलब क्या है? If there is a topic, उसके pros क्या है, cons क्या है, right? उसका analytical points क्या है, इसके ऊपर क्या criticism हुआ है, इसका contribution क्या है, impact क्या है. That is critical thinking. You are taking into consideration all the aspects of a topic, right? You do that, और ये habit होगी ना, तो answer writing becomes quite easy. If you don't do this, answer writing would be a real challenge. Now the last topic of this whole first lecture, how to deal with online mode. ठीक है? अब ऐसे मत करना सर, ऑनलाइन वाले को बोलो ना, हमको क्यों रोक के रखा है. Understand this. कई बार ये होगा कि you have some urgent work, आप घर चले गए तो आप ज्वाइन करोगे. ये ऑनलाइन मोड ने एक फायदा ये क्रिएट किया है, दैट यू कैन नॉट मिस द लेक्चर. पहले क्या था, ऑफलाइन था तो फिर लेक्चर मिस हो जाते, कुछ मिलता नहीं था. नाउ दैट इज अ गुड थिंग, राइट, विद अस. देयर इज वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है, व्हिच इज नो डिफरेंट देन द फिजिकल वन. समथिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ विद ऑनलाइन गाइस, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये जूम का प्लेटफॉर्म, राइट, है ना. तो यहाँ पे यू कैन आस्क क्वेश्चंस. ये लोग अभी पूछ रहे हैं मुझे, यहाँ पे क्लियर इंटरेक्शन है. मैंने अभी उनको म्यूट कर दिया है बिकॉज देयर वाज सम डिस्टर्बेंस, राइट. बट इफ आई अनम्यूट यू, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली फ्रॉम योर होम. तो आपका आवाज यहाँ पे आएगा, एंड वॉट एवर आई स्पीक यू विल गेट टू नो दैट सिटिंग इन योर होम, राइट. सो इज नो डिफरेंस एज सच. प्रॉब्लम क्या होता है ऑनलाइन लेक्चर में, जनरली पीपल से दैट इंटरेक्शन नहीं होता, बट वी हैव एड्रेस्ड दैट, राइट. देयर इज इंटरेक्शन, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, यू कैन डिस्कस, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, राइट. देन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, मैं दिखाता हूं आपको. जुडिशियस यूज ऑफ इंटरनेट यू शुड डू. ये इसके ऊपर आई वुड टॉक मोर अबाउट दिस लेटर ऑन, बट आई वुड से यू अवॉइड यूजिंग इंटरनेट एज ऑफ नाउ. एक सिंपल चीज बता रहा हूं मैं आपको, यू फर्स्ट फिनिश एनसीईआरटी, उसके बाद ही इंटरनेट यूज करना, तब तक नहीं. बिकॉज इंटरनेट मेनी टाइम्स इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स इन द सेंस एनीबॉडी कैन क्रिएट एनी पेज, राइट. और कोई भी कुछ भी क्रिएट कर सकता है ना. मैंने डाल दिया अपना श्री पंकज सर, you know, he's a great teacher and he has delivered so many lectures. सच है क्या, झूठ है ना. एग्जाम्पल ना, या फिर आई कैन कम अप विद एनीथिंग, एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. सो थोड़ा रुको एंड पहले पढ़ो एनसीईआरटी. वंस यू रीड एनसीईआरटी, आप जान जाओगे कि इंटरनेट पे क्या सही है और क्या गलत है. इसलिए डू नॉट रियली बी इन अ हेस्ट टू गो टू द इंटरनेट. दैट इज अ सोर्स, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू शुड नो द जुडिशियस यूज ऑफ इंटरनेट. वेट फॉर सम टाइम. यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको एक बार सब्सक्राइब करो, बिकॉज कई सारे इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे. कभी कभी क्या होता है, यू फील लाइक मैं क्या करूं एक सब्जेक्ट का, है ना. यू गो थ्रू दैट वीडियो ऑफ वट एवर 40 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट. आपको आइडिया मिलेगा कि क्या करना है एग्जैक्टली. दिस इज पार्ट ऑफ हैबिट, ठीक है. सो दिस इज ऑनलाइन मोड. जो मैं स्टडी मटेरियल की बात कर रहा था, दिस वुड बी द वर्चुअल क्लासरूम. गूगल क्लासरूम का आपको आईडी शेयर किया जाएगा, right? You would join that classroom. वहां पे study material would be uploaded, so don't worry. You would get in PDF format. You can download it, get printed. If you are not in Pune, if you are here, you will get the hard copy. समझ में आ रहा है? Okay. क्लासरूम कुछ ऐसे दिखेगा जैसे कि अभी भी चल रहा है. एक्चुअली इसको ये डेमो देने की जरूरत वैसे नहीं है. So you can ask questions here. I can share some document the way I have done it now, the presentation. And यहाँ पे जो मेरा दिख रहा है, तो ये पुराना है लेक्चर का.
So it is nothing different. Even if you miss any lecture, you can attend that in an online manner. So do not miss the lectures. The convenience mila hai hamare liye, to fir attend all the lectures. So this is what I intend to discuss today. Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos.